For the today's talk, our topic is mind your mind. So to imbibe a little bit curiosity in you, could you think of what is mind in your mind? So to throw a light on this topic, we have today's speaker, Sister BK Supriya. So I would request, Sister, you to please come on the stage. So Sister BK Supriya, she has done a Bachelor in Engineering Computer Science from Pune University, and she has also done MBS HR and MBA Self-Management and Crisis Management. She is currently doing postgraduate diploma in psychological counseling from Symbiosis Pune. Currently, she is working as a visiting Raj Yoga faculty for MSc Yoga and Meditation, students of MIT World Peace University. She is practicing Raj Yoga meditation past 13 years and actively involved in various services, especially education wing of Brahma Kumaris. So we will welcome Sister with a huge round of applause again. Over to you, Sister. Good evening, everyone. Yeah, welcome all. Okay, great. So how do you find the topic? Interesting, useful. Okay. So do we think connected to related to everyone, right? We need to mind our minds, right? Do you all agree with this? Yes. Okay, great. Why? Why do you feel so? Why do you feel so that we need to mind our minds? If you control your mind, you can do many things and you can have everything. That's why you have to take care of your mind. Exactly, very nice. Anyone else? We bother about others rather than us. Pardon me? We bother about others rather than us. So now it is time to mind our minds, right? Anyone else? So we need to control waste thoughts, then we can do something better than that. Exactly, right? Hana? There are many thoughts at a time. So we should finalize that which one is first, then second, then third. We should train our mind to create only those thoughts which are positive, powerful, purposeful, useful, right? So that training is needed. And why that training is needed, like brother said? Because these days our minds are creating what? Wasteful thoughts, negative thoughts. It feels stressed because of the kind of thoughts it creates. Then anxiety issues, worry, tension. Then there are many other things. Could you please name a few? Actually, this, if we mind our mind, this will lead us, actually, how do we go proceed in the day? In the day. Lost or positive. एग्जैक्टली है ना. लगता है आप सबको कि यही मेन बीज है. इट इज़ द सीड ऑफ एवरीथिंग. एवरीवन एग्रीज कि माइंड में जो थॉट्स आते हैं, थॉट्स आर द सीड्स ऑफ आवर एक्शंस, एंड आवर एक्शंस विल लीड टू आवर डेस्टिनी दैट वी एक्सपीरियंस इन दिस लाइफ टाइम, राइट? और हर एक को डेस्टिनी कैसे चाहिए? अच्छी, बहुत अच्छी, राइट? है ना. और अभी के समय पर क्या हो रहा है? जो बीज है, द सीड itself is not that powerful and positive, है ना. हमें पता है ना, कोई भी अगर हमें like physical seed also, if it is not that good quality. There are two cars that are. Sorry to interrupt. There are two cars. TS09F J8229. Whose car is this? And another car TS07 KF8658. Could you please park them in the parking? They are just in the front of the Gyan Yog Bhavan. Okay, the sister may help you. Okay, thank you. Sorry to interrupt. No problem. है ना. If the seed is not that healthy, the tree or the plant which will come out of it and the fruits that it will bear in future will not be healthy, है ना. So for our life, thoughts are the seeds of our actions. अगर वो ही थोड़े से weak है, negative है,
समटाइम्स टॉक्सिक है, तो उसके थ्रू जो एक्शंस होंगे वो भी कैसे होंगे, वो भी टॉक्सिक हो सकते होंगे ही, निगेटिव है ना, निगेटिव हो सकते हैं, टॉक्सिक हो सकते हैं. वेस्टफुल थॉट्स है तो दैट काइंड ऑफ एक्शंस विल बी मोर इन आवर लाइफ, और फिर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वी विल एक्सपीरियंस दैट काइंड ऑफ अ डेस्टिनी. और जैसे सिस्टर ने कहा, डेस्टिनी कैसे एक्सपीरियंस करनी है हमें, बहुत सुंदर. एवरीवन एग्रीज विद दिस? ओके. तो टेबल तो हमारे सामने है, वी नो a table looks like this, but there is another concept, table of our life, है ना. Every table has 4 legs or 4 pillars, we can say, upon which it stands still or stable. Fine. Now for us to experience stability in our lives, could you please identify which are those pillars which need to be stable? Family, okay, mana relationships, we need to have stable, है ना, peaceful relationships, loving relationships. That is one of the pillars. Another one, health, physical health. You mean to say physical health, right? Okay. So because that is, those are 2 different pillars. So mental emotional health is one of the pillars, and then the physical health. We need both of them, right? है ना? And then only one is linked. Career, that's great. है ना. फाइनेंशियल हेल्थ, है ना. आप थोड़ा सोच के देखो, किसी की हेल्थ अच्छी है, हाँ, उसका पास पैसे भी बहुत ज़्यादा है, लेकिन रिलेशंस में कुछ सुख नहीं है, क्या उसका लाइफ स्टेबल रहेगा? नहीं रहेगा, है ना. रिलेशंस बहुत अच्छे हैं, हेल्थ भी है, लेकिन धन नहीं है, तो भी स्टेबिलिटी रहेगी? नहीं रहेगी. और बाकी सब कुछ अच्छा है, मनी ठीक नहीं है ना. ओवर थिंकिंग हो रहा है, लूप थिंकिंग हो रहा है. कभी आपने एक्सपीरियंस किया है? हैव यू एवर एक्सपीरियंस लूप थिंकिंग? कुछ पॉइंट हो जाता है, मुझे वो स्ट्राइक हो जाता है, आई फील वेरी स्ट्रांगली अबाउट इट. आई एम टॉकिंग अबाउट नेगेटिव थिंग. पॉजिटिव को हम इतना रिपीट नहीं करते हैं, है ना. और सुबह जो शुरू हो गया, मैं खुद को समझाती हूँ कि नहीं, सोचना नहीं है. थोड़े देर के बाद व्हेनेवर आई लुक एट माई ओन माइंड, क्या दिखता है? वही सेम लूप चल रहा है, फिर बाद में फिर से वही चल रहा है ना. तो ये लूप थिंकिंग, अगर ये सब कुछ चल रहा है, देयर आर एवरीथिंग एल्स इज परफेक्ट, विल आई बी एबल टू एन्जॉय दैट परफेक्शन इन माई फिजिकल हेल्थ, इन माई रिलेशनशिप्स एंड इन माई फाइनेंशियल हेल्थ? नो. सब कुछ होते हुए भी क्या है, मज़ा नहीं आएगा, कुछ भी नहीं है एक्चुअली, है ना. सो these are the 4 pillars of our table of life, है ना. तन मन धन जन, याद रखने के लिए अच्छा है ना. तन मन धन जन, इनमें से कोई भी स्टेबल नहीं है, तो ये लाइफ रूपी टेबल स्टेबल नहीं रहेगा. तो इस टेबल को स्टेबल करने के लिए एक एस चाहिए, एंड दैट एस इज स्पिरिचुअलिटी. ठीक है, वी नीड टू हैव दैट विथ आवर सेल्स, है ना. सो आवर प्रैक्टिकल लाइफ, डे टू डे लाइफ एंड स्पिरिचुअल लाइफ, these are not 2 different things. It is one and the same thing, because I, the spirit, is going through this life experience. तो मुझे अपनी सत्य पहचान चाहिए, अपनी विशेषताओं की, गुणों की पहचान चाहिए. आई नीड टू नो माई सेल्फ, आई नीड टू नो माई फैकल्टीज इन अ वेरी गुड फैशन, इन वेरी गुड वे. उनको मैं समझ कर उनको ठीक से चलाऊँ, तो ये लाइफ का एक्सपीरियंस है, वो अच्छा होता जाएगा. और कहाँ पे भी कुछ भी डिस्टर्बेंस हो, अभी नहीं है, आ सकता है ना, वो आ गया तो भी आई विल बी इन अ बेटर पोजिशन टू टैकल दो सिचुएशंस. ठीक है. तो अगर हम इन दोनों को जोड़ दें, मेंटल, इमोशनल एंड आवर फिजिकल हेल्थ, विल से हेल्थ, व्हाट डू वी वांट टू एक्सपीरियंस इन आवर डेस्टिनी इज 100% हेल्थ, 100% वेल्थ एंड 100% हैप्पीनेस. 100% से कम किसी को चाहिए क्या? कोई है यहाँ पे जो कहे नहीं थोड़ा सा कम भी चलेगा? नहीं है ना. तो अंदर की आश क्या है? परफेक्शन, है ना. सब कुछ मुझे अच्छा मिले, सुंदर मिले. सुंदर शब्द ही कितना सुंदर है ना, है ना. अच्छा चाहिए सब हमको. लेकिन आज के समय पर इफ़ वी लुक एट आवर ओन लाइव्स और द पीपल अराउंड अस, और इन लाइक
इन जनरल भी अगर हम कहें, सोसाइटी कहे, या अभी के समय पर विश्व की जो अवस्था है, डू यू थिंक दैट एनीवन इज देयर हु इज एक्सपीरियंसिंग 100% ऑफ ईच ऑफ दिस, दैट काइंड ऑफ एन डेस्टिनी? डू यू थिंक कोई एक्सपीरियंस भी कर रहा होगा अभी के समय पर? नहीं है, राइट? लेकिन फिर क्या करें? तो उसके लिए कुछ चीज़ों को हमें समझना होगा, और उसमें से सबसे पहली जो चीज़ है वो हमें अपने मन को समझना होगा। क्यों, वो भी हम देखेंगे। देखो, मन है, आज के समय पर जब भी वो डिस्टर्ब होता है तो हम देखते हैं या तो फिज़िकल हेल्थ का कुछ इशू हो जाता है तब मन डिस्टर्ब हो जाता है, या धन का कुछ इशू, या जन का कुछ इशू, रिलेशनशिप का, मन डिस्टर्ब होता है, हो जाता है, राइट? फिर हम क्या कहते हैं, यहाँ के डिस्टर्बेंस के कारण मेरा मन डिस्टर्ब्ड है, ये ठीक हो जाएगा तो मेरा मन भी ठीक हो जाएगा। एंड देन वी व्हाट डू वी स्टार्ट डूइंग? We start to correct or rectify that particular thing or situation, which is okay. लेकिन हम फिर भी क्या कर रहे हैं, जो चीज़ मेरे कंट्रोल में नहीं है उसे अपने कंट्रोल में लाने की कोशिश कर रहे हैं। ऑल्दो ये ट्रू है कि कुछ भी मुझे जीवन में परिवर्तन लाना है तो मुझे उसका आउटर एस्पेक्ट, प्रैक्टिकल एस्पेक्ट पे भी ध्यान देना है, बट एट द सेम टाइम इनर एस्पेक्ट पर भी ध्यान देना होता है। तो बाहर मुझे जो कुछ भी ठीक करना है और जो मेरे कंट्रोल में है वो मुझे करना ही है ना? जो भी एक्शंस लेने हैं, अपने सोच में चेंज करना है या एक्शंस में, उसके ऊपर मुझे ध्यान देना है ना? बट दूसरों की सोच, दूसरों के एक्शंस, उनके व्यवहार, है ना, उनकी सोच, या फिर हम कहें कोई परिस्थिति, ये मेरे कंट्रोल में नहीं है। अगर हम इन सब के ऊपर ही ध्यान देते रहे तो और डिस्टर्ब होते जाएंगे, क्योंकि आई एम फीलिंग हेल्पलेस। ये ट्रुथ है, लेकिन दिस इज़ नॉट द ओनली वे टू रिजॉल्व द प्रॉब्लम। स्पिरिचुअलिटी टीचेस अस समथिंग डिफरेंट। व्हाट डज इट टेल अस? कि जो भी प्रॉब्लम मेरे तन, धन या जन में आया है, उसका रूट कॉज इज़ देयर इन माई माइंड, इन माई थॉट्स। पहले वहाँ पे डिस्टर्बेंस क्रिएट हुआ था जहाँ पे मैंने ध्यान नहीं दिया, और धीरे 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 फिर वो बाहर आ गया इन रियलिटी और इन द आउटर वर्ल्ड। सो आउटर वर्ल्ड इज जस्ट द रिफ्लेक्शन ऑफ माई इनर वर्ल्ड, नथिंग एल्स। तो अभी के समय पर मुझे अपने जीवन में बाहर अगर कुछ पसंद नहीं आ रहा है तो मुझे सिर्फ थोड़ा सा अंदर झांकना है और देखना है कहाँ पे उसका बीज पड़ा है। कोई रिश्ता खराब होता है, बहुत बार में, मोस्ट ऑफ द टाइम 99% ऑफ द टाइम्स हमारा एक्सपीरियंस ये होता है कि इनिशियली ठीक है, बाद में ख़राब हो जाता है। बहुत रेयर चांसेस में होता है, ऐसे नहीं, बट बहुत कम है कि स्टार्ट से ही रिश्ता ख़राब है। होता है बट बहुत कम है। बट यूजुअल जो हम सबका एक्सपीरियंस लाइफ में है कि इनिशियली ठीक होता है, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वो ख़राब हो जाता है। तो माना क्या, पहले तो ठीक था, फिर कुछ हुआ, एक बीज आ गया अंदर रिजेक्शन का उनके प्रति, या उनके मन में मेरे प्रति, फिर वो रेसिप्रोकेट होता गया। करते करते अभी हम एक दूसरे को देखना भी नहीं चाहते हैं, या हम टॉलरेट नहीं कर पा रहे एक दूसरे के स्वभाव संस्कार को, है ना? तो बीज अंदर है। ऐसे ही बाकी चीज़ों के लिए भी बीज हमेशा मन से शुरू होता है। वहाँ पे कुछ मेरी सोच, कुछ मेरी वृत्तियाँ, है ना, दृष्टिकोण, है ना, इसमें कुछ गड़बड़ाई है, और धीरे धीरे फिर वो बाहर आएगा। तो जब हम ये समझ लेते हैं तो मेन चीज़ मेरे हाथ में आ जाती है कि क्योंकि मन तो मेरा है ना, इट इज़ माई माइंड, तो इसके ऊपर काम करना मेरे लिए सहज है, rather than working on the situations and the people which are not in my control. ये मेरे कंट्रोल में है, ये मेरा है, तो मैं इसको समझूं और धीरे धीरे उसके ऊपर काम करते जाऊं, तो जो इसका रिफ्लेक्शन बाहर था, अगर इसको ही मैंने साफ़ किया तो बाहर की चीज़ भी बदलने वाली है ना? तो इससे क्या होता है, एक तो फ्रीडम या एक एम्पावरमेंट अंदर महसूस होती है कि कुछ भी हो जाए, मैं थोड़ा अपने साथ काम करूं, मैं उस चीज़ को, परिस्थिति को हैंडल कर सकती हूँ। ठीक है, तो फिर ऐसे मन को समझना चाहेंगे। तो आज के सेशन में हम मेनली सारी, क्योंकि टॉपिक ही वही है, हम मन की ही बात करेंगे, है ना? मन का मेरे जीवन में अलग अलग एस्पेक्ट्स पर क्या प्रभाव है, कैसे ये मेरी मेरा जो भाग्य है, मेरी डेस्टिनी है, उसको फॉर्म करने में काम करता है। इन सब चीज़ों को देखेंगे
और फिर एंड में हम इसको भी देखेंगे कि कैसे फिर मैं इसके ऊपर ऐसा काम करूँ जो लॉन्ग लास्टिंग हो या परमानेंट हो। क्योंकि मैं समझती हूँ हम सब ने ये तो काम किया ही है ना, जब भी कुछ प्रॉब्लम आता है वी ट्राई टू वर्क ऑन आवर थॉट्स एंड फीलिंग्स, राइट। हम करते हैं, लेकिन उससे क्या होता है, बहुत बार क्या होता है कि वो एक टेम्पररी इफेक्ट होता है। हाँ, कहाँ पे अगर कभी आपने ये एक्सपीरियंस किया है, कोई ऐसा रिलेशन है जहाँ पे थोड़ा टकराव है, थोड़ा मना है, और मुझे अभी उससे परेशानी हो रही है, और फिर एक दिन मैं अपने साथ डिसाइड करती हूँ कि नहीं, बस हो गया अभी ये, मुझे ठीक से जीना है। मैं अभी क्या करती हूँ कि मैं अपने ऊपर काम करती हूँ। उन्होंने वैसे भी बात की ना, कैसे भी बात करें, मैं शांत रहूँगी, मैं ठीक से थोड़ा सा चीज़ों को हैंडल कर लूँगी, वो तो नहीं बदलने वाले हैं, मैं कर लूँगी, ये सब सोचते हैं। एंड व्हेन द सिचुएशन कम्स और द पर्सन कम्स इन फ्रंट ऑफ मी एंड उनका वही संस्कार एग्जिबिट होता है, फिर मेरा थोड़ा सा सहन शक्ति हम दिखाते हैं, एंड आफ्टर सम टाइम वी फॉल बैक टू द ओल्ड पैटर्न। मेरा भी वही संस्कार इमर्ज हो जाता है और वहाँ पे हम हार खा लेते हैं, है ना। तो टकराव में ही रिजल्ट हो जाती है। ये नहीं होता कि उनके साइड से टकराव आया और मैंने उसको संभाल लिया। ये कभी आपने फील किया है या कभी एक्सपीरियंस किया है? हाँ, क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, हम पूरे विधि से काम नहीं कर रहे। तो वो वाली जो विधि है जिससे परमानेंट चेंज आ जाएगा, वो वाली विधि हम एंड में देखेंगे, ठीक है। सो एज अबव सो बिलो। तो अभी के समय पर, इन दिस पॉइंट इन टाइम, हम सब के, इंक्लूडिंग मी, हम सब के जीवन में तन मन धन जन की जो भी अभी की हेल्थ है, उसका बीज कहाँ पे है? अंदर, मेरे मन में। लाइक आई सेड, outer world is just the reflection of my inner world. If I clean my inner world, outer world will also be clean. Fine? So, अगर मन को मुझे समझना है तो मन का मेन काम क्या है? हाँ, मैंने ये भी दिखा दिया तो इजी है है ना। तो क्या काम है? मन सोचता है, और क्या करता है मन? आपका मन और क्या क्या करता है? मन एक्शन लेता है? नहीं, एक्शन बाहर है। अच्छा जी, फिर बाहर एक्शन होती है। मन में पहले सोच आई, तो सोचना ये काम हमने ले लिया, हाँ, वो हमने आइडेंटिफाई कर लिया। एनीथिंग एल्स? सोचने के बाद रिएक्शन, एक्शन। हाँ, जैसा सोच वैसा रिएक्शन। राइट, हाँ, दैट इज आउटसाइड, है ना। लाइक ब्रदर सेड, फील करना, मन के पास वो शक्ति है जो फील कर पाता है, महसूस कर पाता है चीज़ों को, है ना। अभी यहाँ पे एसी चल रहा है, ठंडक है, अच्छा लग रहा है ना। एक कंफर्टेबल एनवायरनमेंट सेटअप यहाँ पे है, तो एक फील किसने किया? मन ने फील किया। तो मन या कितने सारे फीलिंग्स को दिन भर में हम अनुभव करते हैं। सुख की फीलिंग है, शांति की फीलिंग है, गुस्से की फीलिंग है, डर की फीलिंग है, ये सारी फीलिंग्स है ना। कौन अनुभव करता है? मन। तो मन की ये कैपेसिटी है और पावर है टू फील, है ना। और एक शक्ति है उसके पास। और क्या आप बता सकेंगे मन और क्या करता है? मन के पास बहुत है। हाँ जी, माइंड इज अ फैकल्टी ऑफ सोल. So that faculty is responsible for creating thoughts, experiencing feeling, and the third thing that I'm going to share. Control what? Whichever thought, which one I should think, which one I should keep aside. No, that is the function of intellect. Fine. मन के पास एक बहुत जादुई शक्ति है. वो पास्ट में जाके आ सकता है, फ्यूचर में जा सकता है. अनुभव है? क्या करता है? घूम के आता है हमेशा. अभी आप कहाँ पे हो? यहाँ पे सारे? श्योर है ना. आप देखेंगे थोड़ा सा भी इस पॉइंट को ले लेना पूरे सेशन में. हाँ, अच्छा, ऐसे बोलेगे तो वो मंकी जैसे ही बिहेव करेगा, है ना. जैसे हम उसको एनर्जी देंगे वो वैसे ही काम करेगा, है ना. माइंड मेरा बहुत अच्छा बच्चा है जो मेरी सारी बात सुनता है ना. ओबीडियंट बच्चा है मेरा, डिसिप्लिन बच्चा है ना. ठीक है, ये कहा जाता है और वो काम भी वैसे कर रहा है, बट अभी उसको सुधारना भी है ना.
ठीक है, तो उसके पास वो शक्ति है कि वो पास्ट और फ्यूचर में जाके आता है। तो ये 3 जो शक्तियाँ हैं वो मन के पास है। तो सबसे पहली वाली जो है ना, तो क्रिएटिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ थॉट्स। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ थॉट्स आपको पता है क्या? आप हम जो डे टू डे लाइफ में एक्सपीरियंस करते हैं, व्हाट डू यू थिंक व्हाट कुड बी द डिफरेंट टाइप्स? पॉजिटिव थॉट्स, देन नेगेटिव थॉट्स, वेस्ट थॉट्स, न्यूट्रल थॉट्स। न्यूट्रल थॉट्स मीन्स, अच्छा ये सारा कवर हो गया है पोर्शन। हाँ, They don't do anything emotional thoughts. अच्छा नहीं, वो किसी पर्पज से ही है, बट उसका पॉजिटिव या नेगेटिव इफेक्ट नहीं है ना। तो नेसेसरी थॉट्स हम उनको कहे, है ना। न्यूट्रल से भी अच्छा शब्द है, नेसेसरी, काम के है वो मेरे। सो ये थॉट्स किस चीज़ों के लिए रहते हैं? हमारे डे टू डे रूटीन के लिए है कि आपको यहाँ पे आना है, तो आपने कुछ तो थॉट चलाया होगा ना कल ही, या जब भी आपने प्लान किया। तो ये सारा प्लानिंग जो है, या हमारे डे टू डे एक्टिविटीज़ को जो करना है, उसके लिए जो थॉट्स चलते हैं वो नेसेसरी, इसीलिए नाम क्या है? नेसेसरी थॉट्स। फिर है वेस्ट थॉट्स। डू यू थिंक दैट वी हैव वेस्ट थॉट्स एज वेल? हाँ, क्यों हम वेस्ट थॉट्स क्रिएट कर रहे हैं? अच्छा, ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाते हैं। ये तो मैं आत्मा ही क्रिएट करती हूँ, सिर्फ अभी मेरा मन के ऊपर कंट्रोल नहीं, इसलिए हो रहे हैं, है ना। हमको लगता है कि वो ऑटोमेटिकली हो रहे हैं, है ना। ठीक है, वेस्ट थॉट्स किनको कहेंगे हम? वेस्ट थॉट्स, राइट, वेरी गुड। दूसरों के बारे में सोचते रहना, हाँ हाँ, तो वेस्ट ही हो गया, क्योंकि आप प्रेजेंट मोमेंट में यहाँ पे हो, लेकिन आप सोच किसी और चीज़ के बारे में चला रहे हो। एग्जैक्टली, They're not result oriented. रिजल्ट ओरिएंटेड नहीं है, ठीक है ना। तो बाय डेफिनेशन, अगर जैसे सिस्टर ने कहा, जो भी थॉट आइदर इफ इट इज़ रिलेटेड टू पास्ट और इट इज़ रिलेटेड टू फ्यूचर, कैन बी कैटेगराइज्ड एज वेस्ट थॉट, बट ओनली विथ वन एक्सेप्शन ऑन बोथ द साइड्स। ठीक है, अब क्यों इनको वेस्ट कहा जाता है? ये तो दोनों मेरे लाइफ के हिस्से हैं ना, पास्ट और फ्यूचर। उनके बारे में सोचने के लिए उन थॉट्स को वेस्ट क्यों कहा जाएगा? Well, if it is related to you, it's okay. अच्छा, Otherwise, it's a waste thought. ओके, हाँ, फ्यूचर के लिए तो इमेजिनरी, पास्ट के लिए इमेजिनरी नहीं होता है, बट फ्यूचर के लिए जो बीत चुका उसके बारे में सोच के क्या फायदा? वेस्ट है। हाँ। जो आने वाला उसके बारे में सोच के हम कुछ कर नहीं सकते। प्रेजेंट में रहें, वही बेस्ट। एग्जैक्टली, राइट आंसर। Past thoughts make you happy also. समटाइम्स दे मेक अस हैप्पी ऑल्सो, राइट। ठीक है, तो इसीलिए मैंने कहा ना, एक्सेप्शन भी है, हाँ, But that is also waste. दैट इज़ ऑल्सो वेस्ट। Because it is not working at present point. जी, सांसें कब चलती है हमारी? पास्ट और फ्यूचर की होती है क्या कभी? अभी के समय पर आप कौन सी वाली सांस ले रहे हैं? प्रेजेंट वाली है। कभी ऐसे होता है कि चला थोड़ा सा मेरा रह गया था, अभी ले लेती हूँ? सबकॉन्शियस माइंड के ऊपर है सांस लेने का छोड़ने का। अच्छा, वो प्रोग्रामिंग सबकॉन्शियस माइंड में होती है, सही बात है ना। तो हमारी हर एक सांस कब किस में है? प्रेजेंट मोमेंट में है। तो मेरा लाइफ का एक्चुअली लाइफ मूव्स मोमेंट बाय मोमेंट, दैट इज़ इट। ये पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर, ये बस एक समाज को, व्यवस्था को चलाने के लिए डीप है ये, बट एक्चुअली सिर्फ प्रेजेंट मोमेंट है ना। लाइफ में क्या है? आप देखो ना, वो जो हो गया तो वो हो गया है ना, अभी वो एग्जिस्ट कर रहा है क्या? नहीं, सिर्फ मेरे मेमोरीज में है, अदरवाइज वो एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। और वो जब हो रहा था ना, तभी हम प्रेजेंट मोमेंट में ही थे। लाइफ हैपन्स ओनली इन प्रेजेंट मोमेंट, दैट इज़ इट। और फ्यूचर का तो हमें कुछ नहीं पता है ना। हमारे प्लान कितने होते हैं और अचानक से कोई और चीज़ हो जाती है। तो हम प्लान कर सकते हैं फ्यूचर में हम ये करेंगे, दैट इज़ इट। बाकी जब उस मोमेंट पर आ जाते हैं, तब भी हम कहाँ पे हैं? प्रेजेंट मोमेंट में है ना। तो प्रेजेंट मोमेंट में ही सिर्फ लाइफ है। अब इस प्रेजेंट मोमेंट में मैं जो हो गया उसके बारे में सोच रही हूँ, या जो करना है उसके बारे में सोच रही हूँ। एम आई नॉट वेस्टिंग माई लाइफ देन? है ना, एक मोमेंट वेस्ट किया माना मैंने लाइफ वेस्ट किया फॉर दैट पर्टिकुलर मोमेंट, इसलिए उनको वेस्ट कहा जाता है। बट लाइक आई सेड, देयर इज़ वन एक्सेप्शन ऑन बोथ द साइड्स।
फॉर पास्ट थॉट्स अगर कुछ हुआ है ना, आई नीड टू टेक सम लर्निंग फ्रॉम इट, है ना, सुधरना है मुझे, कुछ समझना है चीज़ों को, और इसलिए मैं गो थ्रू कर रही हूँ, ओनली फॉर दैट पर्पज़। इसको हम वेस्ट नहीं कहेंगे। हाँ, लेकिन वो सीन देखा, फिर ऐसे वैसे करते करते कुछ और डायरेक्शन में चले गए, है ना, तो दैट इज़ वेस्ट देन। और फिर इस साइड फ्यूचर में प्लानिंग करना होता है ना हर एक चीज़ का, तो वो भी हम कर ले, लेकिन बार बार उसी प्लान को हम रिवाइज करते रहे, हुआ तो क्या होगा, नहीं हुआ तो क्या होगा, तो फिर वो क्या हो गया, वेस्ट। एक बार प्लान कर लो, बुद्धि को प्लेन कर दो, नो फोकस ऑन एग्जीक्यूशन, दैट इज़ इट। तो ये सिर्फ हम सबकी प्रॉब्लम नहीं है, ये जग में सबकी प्रॉब्लम है कि मन जो है ना प्रेजेंट मोमेंट में नहीं टिक रहा है ना। बहुत साल पहले कोई स्टडी हुई थी, रिसर्च हुई थी इसके ऊपर, तो ये पाया गया था 80% ऑफ द थॉट्स विच आर क्रिएटेड इन द होल डे आर रिलेटेड टू पास्ट, 15% of the thoughts are related to future, only 5% of thoughts are related to present moment। और उसमें भी बहुत बार हाँ गुस्सा आ रहा है तो पास्ट फ्यूचर में नहीं रहते, उसी मोमेंट में रहते हैं हम, है ना, या बहुत खुशी हुई तब भी रहते हैं, बट ऐसे बहुत खुशी के, बहुत सुंदर शांति के, है ना, ब्लिसफुल स्टेज के, या किसी को ब्लेसिंग देने के स्टेज के, ऐसे सीन्स हमारे जीवन में कितने होते हैं रोज़मर्रा के जीवन में, बहुत ज़्यादा नहीं। मैंने कंपैरिजन में, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि हमारे जीवन में शांति नहीं है, सुख नहीं है, बिल्कुल भी नहीं कर रही हूँ, ये है, बट उसका परसेंटेज इन कंपैरिजन विथ अदर इमोशंस इज़ वेरी लेस, है ना। तो वो 5% वाला भी थोड़ा सा हाथ से निकल ही जा रहा है, ठीक है। तो इसलिए इनको वेस्ट कहा जाता है, तो इनके ऊपर हमें ध्यान देना है आज से नेक्स्ट संडे टॉक तक एटलीस्ट, है ना। हम अपने थॉट्स को देखेंगे, कैटेगराइज करेंगे, ये कौन से टाइप का है, अच्छा नेसेसरी, ठीक है, नेसेसरी भी बहुत ज़्यादा उसके थॉट्स चले वो वेस्ट में चला जाता है ना। वेस्ट देखने में बहुत अच्छे लगते हैं, सिंपल लगते हैं, ये हार्मलेस है, बट वैसे नहीं है। पास्ट के बारे में हम सोचते तो वहाँ से कुछ ना कुछ वो हर्ट निकाल के लाता है, फ्यूचर के बारे में ज़्यादा सोचते तो कुछ ना कुछ अनसर्टेनिटी, फियर लेके आएगा, तो इसलिए इनके ऊपर भी अटेंशन रखना होता है। तो वेरी सिंपली सेड, वेस्ट थॉट्स have the capacity to lead to negative and toxic thoughts। इनको भी हम समझते हैं। सारे नेगेटिव इमोशंस पता है, थियोरेटिकली पता है या एक्सपीरियंस है ना। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, घृणा, मद, मत्सर, आलस्य, अलबेलापन, भय, चिंता, है ना। हम सबको इनका अनुभव भी है। और टॉक्सिक माना अभी उसकी इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, विच कैन हार्म मी एंड अदर्स एज वेल। और फिर आ जाती है चौथी कैटेगरी, बहुत ब्रॉड कैटेगरीज है, इनके बहुत शेड्स है इन थॉट्स के। तो ये है पॉजिटिव, प्योर, पावरफुल एंड एलिवेटेड थॉट्स। तो ये भी आते हैं, नहीं आते ऐसे नहीं है, बट अभी के समय पर अगर हम देखें तो इनका परसेंटेज थोड़ा कम है। तो जब भी हमारे अंदर थॉट्स क्रिएट होते हैं तो पहले क्या होता है, हमारे मस्तिष्क में, ब्रेन में वेव्स, तरंगें तैयार होती है। थॉट्स दिखते हैं क्या हमें? इनविजिबल है ठीक है, दिखते नहीं है। हाँ, और फिर हमें क्या लगता है कि वो दिखते नहीं है तो कोई समझ भी नहीं पाएगा कि मेरे मन में क्या चल रहा है। बाहर तो मैं अच्छा बात कर सकती हूँ, अच्छा ठीक से बिहेव कर सकती हूँ, अंदर का तो सिर्फ मुझे पता है ना। इज़ दिस ट्रू? दूसरों को पता चलता है, वाइब्रेशन से पता चलता है। थॉट्स आर नॉट प्राइवेट, वेरी राइट। समटाइम्स पता चलता है, अच्छा करना पड़ता है, हम कर सकते हैं अपने आप से। अच्छा ठीक है, क्या टेलीपैथी ऐसे सिखाते नहीं है। क्या होता है, हमारा मन शांत होता जाता है। जितना मन शांत होता जाता है उतना वो वाइब्रेशंस को कैच कर पाता है। कैच तो एनीवेज हर कोई कर पाता है, हम थॉट्स को भी कैच कर पाएंगे। देखो, राजयोग की भी बात अलग है,
ये तो रिजल्ट में आगे आगे आता जाएगा, ज़रूरी नहीं कि ऐसे तो मना घबराने की ज़रूरत नहीं। अच्छा यहाँ पे थॉट्स भी पता चल रहे हैं और उनको, ऐसी कोई बात नहीं है, तो डरने की बात नहीं है, आप बहुत फ्रीली आ सकते हैं यहाँ पे। कोई अच्छे प्योर गुरु, हमने सुने हैं ना ऐसी कहानियाँ कि भगत माना कोई आके बैठा है, शिष्य उनका, या कोई जनरल कुछ प्रॉब्लम है पूछना है, वो आके बैठता है और ये प्यार से उसको पूछते हैं, अच्छा ये प्रॉब्लम है तुम्हारा, उसने कुछ बोला नहीं है उसके पहले ही, अच्छा ये प्रॉब्लम है, इसका ये हल है, ये कर लो बच्चे, हो जाएगा। अब इसने प्रॉब्लम बताया नहीं, इसको कैसे पता चल गया? हाँ, तो देखो हम यहाँ पे ये वाली बात नहीं करी किसी के पास कोई सिद्धि है उसकी बात नहीं करें, मैं प्योर, इसीलिए प्योर शब्द मैंने यूज़ किया। एक प्योर सोल जो अनेकों को प्यार दे रही है, पालना दे रही है, कैसे वो रीड कर पाए? क्योंकि उसका मन बहुत शांत है, प्योर है, तो वाइब्रेशंस के साथ साथ उन शब्दों को भी कैच कर पाया। ठीक है, तो लोग कैच कर सकते हैं, बट उसके लिए यहाँ पे बहुत शांत होना पड़ता है। और टेलीपैथी कब होता है? जब मैंने किसी के बारे में सोचा और उन्होंने भी उसी समय सोचा, तो वो हम थोड़ा सा थॉट का कुछ कैच कर लेते हैं कि याद आ गई या फ़ोन कर लिया उसी वक्त, वो वाली बात है। तो जैसे हमने कहा थॉट्स जनरेट हुए तो कुछ तरंगे, वाइब्रेशंस हमारे ब्रेन में फैलती है, ठीक है। और एट दैट पॉइंट इन टाइम इटसेल्फ जिसके लिए हमने वो थॉट क्रिएट किया था उस तक वो पहुंचता है, उसके वाइब्रेशंस पहुंचते हैं। ये मेश नेटवर्क है। नेटवर्किंग में अगर किसी ने सीखा होगा कंप्यूटर नेटवर्क्स में, तो हर कोई नोड हर कोई दूसरे नोड से कनेक्टेड है। इट इज़ कॉल्ड एज मेश नेटवर्क। तो वी ऑल सोल्स आर कनेक्टेड विथ एवरी अदर सोल ऑन दिस प्लैनेट, है ना। तो बहुत पावरफुल नेटवर्क है, वायरलेस, है ना। तो मैंने सोचा और उसी मोमेंट में उस सोल तक, उस व्यक्ति तक वो थॉट के वाइब्रेशंस पहुंच जाते हैं। बट रीड करना नहीं करना ये एक अलग बात है, हर कोई की वो कैपेसिटी भी नहीं होती, क्योंकि यहाँ पे अभी ये बहुत बिजी है ओवर थिंकिंग में, लूप थिंकिंग में, वेस्ट थिंकिंग में, तो वो कुछ रीड नहीं कर पाते। बट वाइब्रेशंस वो व्यक्ति कंज्यूम कर लेती है। तो अगर मैं किसी के बारे में निगेटिव सोचती हूँ, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम दैट सोल विल कीप ऑन कंज्यूमिंग दोज नेगेटिव वाइब्रेशंस एंड दोज नेगेटिव वाइब्रेशंस विल क्रिएट नेगेटिव थॉट्स इन दैट पर्सन फॉर मी। ये लीड हो सकता है, ये हो सकता है ना। तो थॉट्स आर नॉट प्राइवेट, वो पहुँचते हैं, वाइब्रेशन उनके तक ज़रूर पहुँचती है। अभी इसको हम थोड़ा सा रिलेट करेंगे एक सिचुएशन के साथ। तालाब हर एक ने देखा है, हाँ। तालाब में कभी पेबल डाल के देखा है? किसने किसने देखा है? इतनों नहीं, और बाकियों ने कभी तालाब में ये काम नहीं किया, है ना। छोटे थे हम, थोड़ा सा पत्थर डाल के देखा कैसी तरंगे आती है ना। देखो एक छोटा सा पत्थर हमने लिया या पेबल लिया और डाला उसमें, क्या होता है? हाँ, और बहुत सुंदर तरंगे तैयार हो जाती है। एंड दे आर वेरी ब्यूटिफुल एंड सूदिंग। जिन्होंने देखा होगा, एक्सपीरियंस किया होगा, दे कैन रिलेट टू इट, राइट। तो हमारे अंदर जो पॉजिटिव, प्योर, पावरफुल, एलिवेटेड थॉट्स क्रिएट होते हैं, वो उस छोटे से पेबल जैसे है ना। उन्होंने क्रिएट होना और बहुत सुंदर सूदिंग तरंगे मेरे ब्रेन में क्रिएट हो जाएंगे। अभी उसके बाद कौन से थॉट्स है? चलो नेसेसरी थॉट्स लेते हैं। वो माना थोड़ा बड़ा पत्थर, वो फेंका तो क्या होता है? तरंगे तैयार होती है, बट वो बहुत सूदिंग और अच्छी लगने वाली, ब्लिसफुल ऐसी नहीं होती है, सुंदर नहीं होती है। बस तरंगे है, डिस्टर्बेंस नहीं फील हो रहा है, बट वो बहुत आनंद नहीं दे पा रही है। फिर उसके बाद क्या है? होता है ना नेसेसरी थॉट्स के लिए, आज क्या सब्जी बनानी है? अच्छा, कुछ नाम याद आया और बहुत खुशी हो गई, ऐसे होता है? नहीं होता है ना। अरे ठीक है, चलो रोज़ का काम है, आज ये बना रहे हैं, है ना। वही, लेकिन विश्व की सर्व आत्माओं का कल्याण हो, सब सुखी हो, सबके जीवन में स्वस्थता हो, उनका मन भी स्वस्थ हो, उनका शरीर भी स्वस्थ हो, उनके सारे संबंध स्वस्थ हो। कैसे लगा? ये एलिवेटेड थॉट्स है। तो सुंदर तरंगे फील हुई ना अंदर। ये अच्छा फील कैसे हुआ? वो तरंगे गई है अंदर, फैली है थोड़ी सी, है ना। फिर क्या है? वेस्ट थॉट्स। अब ये क्या है? थोड़ा बड़ा पत्थर है, वो फेंको। अब ऐसे इस साइज़ का पत्थर डालो तो अभी बहुत सुंदर तरंगे आने वाली है? नहीं, अभी पानी डिस्टर्ब होगा।
बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस नहीं है, लेकिन वो डिस्टर्बेंस क्रिएट करेगा ज़रूर। वैसे ही है, वेस्ट थॉट्स स्लाइट डिस्टर्बेंस हमारे कॉन्शियसनेस में क्रिएट करता है, और फिर वो वेव्स मेरे ब्रेन में फिजिकल स्पेस पर भी, माना फिजिकल मैटर पर भी वो डिस्टर्बेंस क्रिएट करता है। और फिर है निगेटिव या फिर आगे टॉक्सिक थॉट्स, माना बड़े बड़े पत्थर लेके डालो पानी में। तो पहले जो शांत था अब क्या हुआ, ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाता है। अच्छा लगता है वो देख के, पानी डिस्टर्ब हुआ, जस्ट विजुअलाइज, वो डिस्टर्बेंस देख के हमें भी अच्छा नहीं लगता है। तो वैसे ही कुछ ऐसा वाला थॉट क्रिएट किया, यहाँ पे डिस्टर्बेंस क्रिएट हुआ तो हम अच्छा फील करते हैं? नो, वी फील डिस्टर्ब्ड। और जितना बड़ा पत्थर उतना बड़ा डिस्टर्बेंस, और फिर उतना ही टाइम फिर से उसको नॉर्मल स्टेज पर आने के लिए होता है, ये है ना। तो ये काम अंदर चलता रहता है। तो हमें क्या करना चाहिए फिर? कौन से वाले पत्थर फेंकने हैं? छोटे वाले, छोटे पेबल्स। माना क्या? प्योर, पॉजिटिव, पावरफुल, पर्पसफुल, एलिवेटेड थॉट्स। मेरा ध्यान वहाँ पे चाहिए, और कोई मुझे सुखी नहीं कर सकता, कोई मेरे मन को शांति नहीं दे सकता। आज जहाँ पे भी हम जाते हैं, या कभी भी किसी का मेडिटेशन कोर्स कर रहे हैं, कोई सेशन ले रहे हैं, पूछते क्या चाहिए आपको, क्यों सीखना है मेडिटेशन? क्या आंसर है? मन की शांति के लिए, है ना। मेरा मन है लेकिन मानता नहीं है, अशांत रहता है, और वो अशांति सहन नहीं होती है, क्योंकि कितना भी भौतिक सुख हमारे पास हो, है ना, सुख हमेशा शांत मन ही अनुभव कर सकता है। डू यू ऑल एग्री विथ दिस? है ना, पंच पकवानों का, है ना, प्लेट हमारे सामने रखा हुआ हो, और वहाँ ही डाइनिंग टेबल पर थोड़ा सा अनबन हो जाए किसी के साथ, अब स्वाद आएगा? अशांत मन सुख नहीं ले सकता। आपका बड़ा बंगला, बड़ी गाड़ी, है ना, और कुछ चीज़, शांत मन उसका सुख अनुभव नहीं करने देगा। तो सबसे पहली चीज़, मेन रिक्वायरमेंट इन आवर लाइफ इज़ हैविंग अ स्टेबल, पावरफुल, पीसफुल माइंड और थॉट्स, है ना। तो ये जो है ना, मन की शांति को भी डिफाइन कैसे करेंगे? वुड यू लाइक टू डिफाइन पीस ऑफ माइंड? डिफिकल्ट टू वी कैन फील इट, ठीक है। डबल लाइट, अंदर अच्छा एकदम हल्का महसूस होगा, है ना, रिलैक्स महसूस होगा। तो हम उसका रिजल्ट बता रहे हैं। अगर मैं पीस ऑफ माइंड को एक्सपीरियंस कर रही हूँ तो मुझे फील कैसे होगा? एक सिंपल आपको उसके लिए एक इक्वेशन को हो या इन्फॉर्मेशन में देना चाहूँगी, जिससे एक हमारे अंदर एक क्लैरिटी आ जाएगी क्यों मुझे अपने थॉट्स के ऊपर ध्यान देना है, और मैं चूज़ करूँगी कौन से थॉट्स मुझे क्रिएट करना है, वो कंट्रोल मेरे अंदर आना चाहिए। वही आज हम देखेंगे, है ना, वही देखेंगे। तो पीस ऑफ माइंड इज़ द गैप बिटवीन टू थॉट्स, दैट्स इट। क्योंकि आत्मा या सोल, स्पिरिट, वो ओरिजिनली ही शांत है। तो जितना मेरे दो थॉट्स में डिस्टेंस होता जाएगा, गैप आता जाएगा, जो मेरा स्वधर्म है, इनेट क्वालिटी है, वो मुझे एक्सपीरियंस में आएगा। और गैप कैसे बढ़ेगा? ये जो फोर्थ कैटेगरी हमने देखी ना, पॉजिटिव, प्योर, पावरफुल, एलिवेटेड थॉट्स, इनका स्पीड कम होता है। इसके कारण दो थॉट्स के बीच में गैप होता है। गुस्सा करते तो स्पीड, है ना, स्टैमरिंग हो जाती है ना, बोलना कुछ है और बीच में एकदम स्टैमर हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि स्पीड इतना ज़्यादा बड़ा है, और इसका तो अपना पोटेंशियल है या कैपेसिटी है, कितने वर्ड्स में बोल सकूं। तो ये थॉट क्या, इसको उच्चारूँ या उसको, ये करते करते स्टैमरिंग हो जाती है। तो निगेटिव, टॉक्सिक, वेस्ट थॉट्स में स्पीड बढ़ती है, मतलब वेस्ट देन निगेटिव एंड देन टॉक्सिक, ऐसे स्पीड बढ़ती जाती है। और उतना ही हम दूसरे तरफ आ जाते हैं, पॉजिटिव, प्योर, पावरफुल, एलिवेटेड थॉट्स, स्पीड बहुत कम होती जाती है। तो अगर मुझे पीस ऑफ माइंड एक्सपीरियंस करना है तो मुझे क्या करना होगा?
स्पीड नहीं क्वांटिटी येस वी कैन, इट इज़ इन आवर हैंड्स ओनली. सिर्फ मैं कौन से वाले थॉट्स क्रिएट करती हूँ उसके ऊपर मुझे ध्यान देना है, बस काम हो गया. और दूसरा उसमें बोनस भी है, क्योंकि ये वाले थॉट्स है ना, उनका एक्सपीरियंस ही पीसफुल होता है. सबका कल्याण हो. कोई डिस्टर्ब हुआ इसमें? पीसी तो एक्सपीरियंस होता है, तो डबल है, डबल फ़ायदा है. गैप के कारण भी मैं अपने अंदर के स्वधर्म को महसूस कर पाती हूँ, और उस थॉट का रिजल्ट ही एक्सपीरियंस ही पीसफुल है ना. तो हमें क्या करना है, हमें सीखना है कि जो भी लाइफ हमारा है अभी के समय पर, द पीपल दैट वी आर लिविंग विथ, और हम जिनके साथ संपर्क में आते हैं, एंड द सिचुएशंस दैट आई एम फेसिंग इन माई डेली लाइफ, ये सब होते हुए I need to train my mind to create positive, pure, powerful, elevated thoughts, regardless of those two aspects. ठीक है, और ये मेरे हाथ में, क्योंकि मन तो मेरा है. जैसे मैं ट्रेन करूँगी वैसे वो चलेगा. अब ये जो वाइब्रेशंस की हमने बात की ना, इसके लिए एक डॉक्टर मसारू इमोटो, ये जापान के साइंटिस्ट थे, इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था. आपने सुना है इस एक्सपेरिमेंट के बारे में कभी? सुना? ठीक है. तो उन्होंने क्या किया था, शॉर्ट में बस एक टाइप ऑफ एक्सपेरिमेंट आपको बताऊंगी. उन्होंने ट्राई किया था कि हमारे जो थॉट वेव्स है या वाइब्रेशंस है, उसका पानी के मॉलिक्यूल्स पर क्या डिफरेंस आता है, स्ट्रक्चर पर क्या डिफरेंस आता है. तो पानी एक कंटेनर में रखा और वो ऐसे जगह पे रखा, उसके ऊपर एक लेबल लिखा और ऐसे जगह पे रखा कि बहुत लोग आते जाते उसको देख सकें. तो अगर सपोज़ एक के ऊपर पीस लिखा और वो रख दिया, फिर दूसरा कंटेनर पे एंगर लिखा और वो रख दिया. लोग आते जाते उनको देख रहे थे, पीस पढ़ा तो दोस काइंड ऑफ वाइब्रेशंस ऑटोमेटिकली क्रिएट हुए, है ना. एंगर पढ़ा तो दूसरे काइंड ऑफ वाइब्रेशंस क्रिएट हुए. अब वाटर वो कंज्यूम करे और उसके ऊपर इफेक्ट आ रहा है या नहीं आ रहा है, वो उन्हें चेक करना था. फिर उसको फ्रीज़ किया गया पानी को, और फिर माइक्रोस्कोप के अंदर चेक किया. तो उनको अलग अलग स्ट्रक्चर्स फॉर्म हुए, ये दिखा. तो उसके पिक्चर्स मैं आपको दिखाना चाहूँगी. देखें, जो बहुत पॉजिटिव अच्छे वाले वर्ड्स हैं ना, जैसे सेल्फ लव, ब्यूटी, पैशन, गुड जॉब, वेल डन, हैप्पीनेस, रेस्क्यू, तो बहुत सुंदर वाले स्ट्रक्चर्स तैयार हुए हैं. और वही ऊपर के आप देखो, एविल है, हेट है, ऐसे वाला लिखा है, वही पानी है, लेकिन वो कुछ अच्छा वाला स्ट्रक्चर फॉर्म ही नहीं कर पाया है. और नीचे देखो, फिर से अच्छे वर्ड्स हैं, तो बहुत सुंदर वाले क्रिस्टल्स तैयार हुए हैं. हाँ, राइट, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर में चेंज आ गया, उसके क्रिस्टल्स अलग फॉर्म हो गए. ठीक है, बट कितना अलग है. अब पानी के बारे में हम क्यों सोचें? रोज़ हम पीते हैं और शरीर में क्या है, कितना % पानी है ना. 70% वाटर ही है शरीर में. हम जो हाँ देखो, फिर हम जो खाना खाते हैं उसमें भी पानी है ना. तो जो कुछ भी हमारे आसपास है, हर जगह अगर पानी है, और जो मैं सोचती हूँ उसकी क्वालिटी अगर वेस्ट, निगेटिव, टॉक्सिक टाइप पे जा रही है, तो उसका इफ़ेक्ट क्या आ रहा है. मेरे शरीर में जो पानी है, अगर उसका स्ट्रक्चर बिगड़ता जा रहा है, इज़ इट नॉट गोइंग टू क्रिएट अ काइंड ऑफ डिसीज इन माई बॉडी? डिसीज इन माई माइंड विल क्रिएट डिसीज इन माई बॉडी. तो आज के समय पर मेडिकल साइंस आगे गया है, कितने ना सारे हॉस्पिटल्स है, सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स है, लेकिन पेशेंट्स उतने ही बढ़ते जा रहे हैं. आप किसी भी हॉस्पिटल में जाओ, लाइन ही लगी हुई है. क्यों? क्योंकि मन के ऊपर कंट्रोल नहीं है. द काइंड ऑफ थॉट्स वी आर क्रिएटिंग, वहाँ पे हमारा अटेंशन नहीं है. तो फिर इसमें एक गुड न्यूज़ है. उन्होंने क्या किया, 3 टाइप के पानी के सैंपल लिए, वाइब्रेशनली पोल्यूटेड पानी. ठीक है, तो फर्स्ट वाला जो है वो बिफोर वाला. फिर दे व्हाट डिड दे डू, प्रेयर्स ऑफर किए. उसके बाद फिर से चेक किया तो उसका स्ट्रक्चर बदला था. माना अगर कुछ अभी बिगड़ा हुआ है और मैं अपने विचारों पर काम करती हूँ, इस मोमेंट से अपने विचारों पर काम करती हूँ, तो अंदर प्रभाव आता जाएगा. तो जिन विचारों के कारण वो डिसीज़ आया है,
वही विचारों को अगर मैं बदलूँ तो वो डिसीज़ निकल भी जा सकता है, ठीक है ना। तो ये वाली बात है। तो इतना ज़्यादा प्रभाव हमारे विचारों का, वाइब्रेशंस का हमारे शरीर पर आ सकता है। एक मैं आपको वीडियो दिखाना चाहूँगी। इसमें क्या था, एक स्कूल में एक्सपेरिमेंट हुआ है दुबई के, 2 पौधों के ऊपर। सारा एक्सप्लेनेशन इसमें है, तो आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। ऑडियो Nobody likes you. No one notices when you're in the room. You're a mistake. You're useless. You're not even green. You look rotten. Are you really even alive? I like you the way you are. Seeing you blossom makes me happy. You're making a difference in the world. You are beautiful. I brought them here to see the plant. I was like, a plant is getting bullied. Like, it's not normal. I think it's an excellent project. To have something tangible that I can actually physically be a part of is, I think, going to be very powerful. As the weeks passed, I started noticing that the one that was being bullied started kind of to droop. While the plant that was being complimented, it was flourishing and beautiful. It's raised the profile massively of different forms of bullying and the effects that bullying can have on people. If it affects a plant, it can definitely affect other people. है ना। तो नेगेटिविटी का ये इफ़ेक्ट हम देखते हैं उनके ऊपर, तो ये हमारे शरीरों के ऊपर भी आ रहा है, और जिनके साथ हम जीवन जी रहे हैं, है ना, उनके प्रति अगर नेगेटिव सोच मेरी चलती है, नेगेटिव वर्ड्स है, वैसे एक्शंस है, वो उनको भी हार्म कर रहे हैं। और बच्चों के साथ तो होता है ना, वेल डन, गुड जॉब, ये बहुत उनको खुश करेगा, सिर्फ मन को खुश नहीं करेगा, शरीर को भी ठीक रखेगा। और वही अगर कुछ अलग वाले कॉम्प्लीमेंट्स है तो, है ना, हम इतना ध्यान नहीं देते हैं, बट वो शरीर पर भी अफेक्ट करेगा, मन के ऊपर भी अफेक्ट करेगा। तो उसके ऊपर इसी कारण मन को क्या करना है, आदत लगानी है कि वो सही सोचे। तो राजयोगा टीचर्स अस द आर्ट ऑफ राइट थिंकिंग। तो इस इफ़ेक्ट को और थोड़ा सा हम डीप में जानते हैं। तो मन ने जो भी थॉट क्रिएट किया उससे फीलिंग्स जनरेट होते हैं, ठीक है। अब जो फीलिंग्स जनरेट हुए उसके बाद दूसरा इफ़ेक्ट जो मन का आता है उन थॉट्स का हमारे शरीर पर आता है, जैसे हमने अभी यहाँ पे देखा। लेकिन यहाँ पे भी दो बातें, एक है वाइब्रेशंस का डायरेक्टली, जो भी हमारे शरीर के अंदर पानी है उसके ऊपर इफ़ेक्ट आता है, और दूसरा है जो हमने सोचा वैसे हमारे फीलिंग्स तैयार हो जाते हैं। और फीलिंग्स के साथ ही साथ इमीडिएटली शरीर में क्या होता है, हार्मोन्स रिलीज़ होते हैं। हाँ, द टाइप ऑफ माई फीलिंग्स विल डिटरमाइन द टाइप ऑफ हार्मोन, दैट केमिकल विच इज़ बीइंग रिलीज्ड इन माई बॉडी। तो अच्छे थॉट्स है तो अच्छे वाले हार्मोन्स, हैप्पी हार्मोन्स रिलीज़ होंगे, और वही अगर मेरे निगेटिव टॉक्सिक थॉट्स है तो वैसे वाले ख़राब हार्मोन्स रिलीज़ होंगे। अब जब वो केमिकल का डोज रोज के रोज़ जा रहा है जो टॉक्सिक है,
तो फिर क्या होगा, धीरे धीरे कुछ ना कुछ डिफॉर्मिटी डिसीज क्रिएट हो सकता है। तो मेरे थॉट्स का डायरेक्टली कनेक्शन मेरे फिजिकल हेल्थ के साथ है। फिर रिलेशनशिप्स, एवरीवन एग्रीज, जैसे हमारी सोच है, वृत्ति दृष्टि है दूसरों के बारे में, वैसे ही तो हमारे संबंध होंगे, है ना। और फिर फाइनेंशियल कंडीशन, लाइक ब्रदर से करियर, है ना। मेरी जैसी सोच है उसके आधार से ही मैं वहाँ पे ठीक चलूँगी। मेरे कलीग्स के साथ, मेरे बॉस के साथ अलग अलग सिचुएशंस आएंगे, चैलेंजेस आएंगे। मेरी थॉट प्रोसेस राइट है, एम्पावर्ड है, नॉलेजफुल है, आई विल बी इन अ बेटर पोजीशन टू हैंडल दो सिचुएशंस। मेरी डिस्क्रिमिनेशन पावर जो है, डिसीजन मेकिंग पावर जो है, वो बढ़ेगी। अ स्टेबल माइंड एक्सपीरियंसेस अ वेरी गुड डिसीजन मेकिंग पावर। वही जितनी अनस्टेबिलिटी है उतने कन्फ्यूजन ज़्यादा है और मिस्टेक्स होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, तो वो सारा वहाँ पे अफेक्ट करेगा। और वैसे ही मेरे थॉट्स का जो एनवायरनमेंट है, फिर सबसे छोटा एनवायरनमेंट ये जो अंदर वाला है, वहाँ से लेके जहाँ पे मैं रहती हूँ, जहाँ पे काम करती हूँ, वहाँ का एनवायरनमेंट, और फिर उसके बाद पूरा विश्व। क्योंकि जो तरंगे हैं ये लिमिट नहीं हो जाती है वहाँ तक, ज़्यादा इफ़ेक्ट उसका उस जगह पे है जहाँ पे मैं रहती हूँ ज़्यादा टाइम, लेकिन ये तरंगे बाहर विश्व में भी फैलती है ना। तो मैं जो फील कर रही हूँ ये अभी प्राइवेट नहीं है, माई थॉट्स आर नॉट प्राइवेट, ये हर जगह फैल रहा है और एक विश्व का वायुमंडल तैयार कर रहा है। तो बहुत बड़ी जिम्मेवारी है अभी के समय पर, जहाँ पे बच्चे भी स्ट्रेस एक्सपीरियंस कर रहे हैं, हर कोई बड़ा कर रहा है, तो हम गेस कर सकते हैं ना अभी विश्व का एक कलेक्टिव वाइब्रेशंस क्या होगा। और फिर वो जो वीक होते हैं ना, उनको वो कलेक्टिव वाइब्रेशंस या जो वायुमंडल है वो अफेक्ट करता है। तो जब मेरे माइंड में, मन में पॉजिटिव थॉट्स है, फीलिंग्स में मैं क्या अनुभव करूँगी, खुशी। आई विल एक्सपीरियंस हैप्पीनेस इन माई फीलिंग्स। बॉडी विल एक्सपीरियंस ऑप्टिमल हेल्थ। रिलेशंस में विल एक्सपीरियंस हार्मनी। फाइनेंशियल कंडीशन में अबंडेंस होगा, क्योंकि यहाँ पे एटीट्यूड ऑफ अबंडेंस एंड एटीट्यूड ऑफ स्कार्सिटी मन की बात है। एग्जैक्टली, तो बाहर अबंडेंस आप ही आएगा। और एनवायरनमेंट ब्लिसफुल रहेगा। और वही यहाँ पे निगेटिविटी है तो फीलिंग्स में दुख, सॉरो अनुभव होगा, शरीर में डिसीज अनुभव होगा, रिलेशनशिप में डिस्कॉर्ड अनुभव होगा, फाइनेंशियल कंडीशन में एक स्कैर्सिटी अनुभव होती रहेगी, एनवायरनमेंट में फिर से मिजरी, दुख अनुभव होगा, है ना। तो ये सारा प्रभाव, यही तो हमारा जीवन है। तो मूल कहाँ पे है, मन में। अब ये वाला पॉइंट हम देखेंगे कि कैसे ये मेरे डेस्टिनी को शेप करता है। सो लाइक वी सेड, सॉ जस्ट नाउ, माय थॉट्स create the feelings that I experience. The kind of thoughts I keep on creating will create the kind of feelings that I keep on experiencing. ठीक है, अभी इन दोनों का कॉम्बिनेशन होके क्या होता है, एटीट्यूड क्रिएट होता है ना। जिस टाइप के थॉट्स मैं क्रिएट कर रही हूँ किसी भी ऑब्जेक्ट के लिए, फिर वो ऑब्जेक्ट एक पर्सन हो सकता है, एक व्यक्ति हो सकती है, या कोई सिचुएशन हो सकती है, वस्तु है, पदार्थ है, कोई जगह है, लोकेशन है, स्थान, उसके बारे में जैसे मेरे थॉट्स है, वैसे फीलिंग्स है, वैसे ही उसके प्रति मेरा एक एटीट्यूड डेवलप होता है। नाउ दिस एटीट्यूड विल लीड टू एक्शन। फर्स्टली परसेप्शन, दृष्टिकोण, कैसे देखती हूँ मैं उस चीज़ को, है ना। फिर इसके बाद आ जाता है एक्शन। फिर एक्शन में क्या है, बोल भी है और कर्म भी है, राइट। फिर अभी क्या है, रिपीटेडली जिस टाइप के थॉट्स, फीलिंग्स, एटीट्यूड, परसेप्शन है और एक्शंस है, ये रिपीट होता जाता है तो क्या तैयार होता है, हैबिट। एंड आफ्टर दैट संस्कार। और संस्कार का सारा जो सम टोटल है वो क्या है, माय कैरेक्टर और पर्सनैलिटी। तो हम और कुछ नहीं है, हमारे की जो इनर पर्सनैलिटी, एक है आउटर पर्सनैलिटी, वो तो हम सबके हाथ में है कि हम कैसे ठीक रहे, प्रेजेंटेबल रहे। इनर पर्सनैलिटी ये सब अंदर बन रही है ना। तो वी आर द सम टोटल ऑफ द थॉट्स दैट वी क्रिएटेड टिल दिस पॉइंट इन टाइम। अब होता क्या है, ये जो है ना, ये दिन भर की कहाँ पे इंटरैक्ट कर रहा है, आइदर इट इज़ फेसिंग सम सिचुएशंस और इंटरैक्टिंग विद पीपल। लेकिन इसका रिस्पॉन्स किसके आधार से रहेगा, जो अंदर का प्रोग्रामिंग है। तो अंदर जो है, और इसीलिए सेम सिचुएशन में दो अलग लोग
अलग बिहेव करते हैं क्योंकि दोनों के अंदर प्रोग्रामिंग अलग अलग है। इसी कारण भाई जी इसी कारण होता क्या है, द डेस्टिनी दैट वी एक्सपीरियंस इज डिफरेंट बिकॉज द प्रोग्रामिंग एंड बिकॉज ऑफ दैट प्रोग्रामिंग द रिस्पॉन्स इज डिफरेंट। और डेस्टिनी में हमने क्या देखा था, वी वॉन्टेड टू एक्सपीरियंस 100% हेल्थ, वेल्थ एंड हैप्पीनेस, बट यहाँ पे डिफरेंस है कारण हमारे विचारों में डिफरेंस है। तो अब इतना सब हमने देखा, हम अब तक क्या देख रहे थे, मन के विचारों का महत्व क्या है। अब हमें क्या देखना है, कैसे मैं ये सीखूं, अपने मन को ट्रेन करूं कि हमेशा ही मैं पॉजिटिव, प्योर, पर्पसफुल, पावरफुल, एलिवेटेड थॉट्स क्रिएट करती जाऊं, है ना, और वो जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो परमानेंट हो। ठीक है, उसके लिए एक एग्जांपल हम पहले देखेंगे। ये एक पेड़ है, जैसे फलों का कलर है, हम कहें कि ये सेब के पेड़ हैं, है ना, इट इज़ एन एप्पल ट्री। अब जितना बड़ा पेड़ है उतने उसके रूट्स फैले होंगे नीचे। अभी होता क्या है, धीरे धीरे ना वहाँ पे जो फल है वो ठीक नहीं आ रहे हैं, तो जो माली है वो सोचता है चलो ये ठीक नहीं है, तो एक सीढ़ी लेता है, हर एक फल के ऊपर स्प्रे मारता है, कुछ ना कुछ करता रहता है, दवाई छिड़कता है, हाँ, कंसिडरिंग और थिंकिंग कि ये ठीक हो जाएगा। डू यू थिंक इससे वो फ्रूट्स ठीक हो जाएंगे? नहीं होंगे। और कब तक करेगा? एक ट्री के लाइफ टाइम में कितने ना फ्रूट्स आने हैं, क्या वो कर पाएगा हमेशा? क्या करेगा फिर? वो बीच में छोड़ देगा, छोड़ दो, जैसे भी फ्रूट्स आने, मैं नहीं कर सकता। और ऐसा ही कुछ हमारे भी जीवन में होता है। थॉट्स है, फीलिंग्स है, वर्ड्स है, एक्शंस है, अपने खुद के कुछ संस्कार है, हम प्रयत्न करते हैं, वी ट्राई टू चेंज आवरसेल्व्स एंड वेरी ऑनेस्टली just to experience that harmony in my inner and outer world. प्रयत्न करते हैं बट विधिवत नहीं जा रहे हैं। उसके कारण क्या होता है, एक पॉइंट पे आकर ऐसे लगता है सब कुछ मैं ही क्यों करूं, वो भी तो बदले ना, छोड़ दो, मैं जो हूँ, जैसा हूँ, ऐसा हूँ, अभी तुम एडजस्ट कर लो, अब मैं नहीं करूँगा, है ना। आते हैं इस डिसीजन पर भी, कभी कभी हम आ लेते हैं। वहाँ पे क्या गलती थी, विधि नहीं अपनाई, वो जो राइट टेक्निक है इन ऑर्डर टू क्योर दिस पर्टिकुलर ट्री, वो उसने नहीं समझा, तो वो होशियार माली नहीं है। अगर कोई होशियार माली है तो वो क्या करेगा, वो समझेगा क्या है ना, इफ़ द रूट्स आर हेल्दी द फ्रूट्स विल ऑलवेज बी हेल्दी। तो व्हाट ही विल डू, ही विल ट्राई टू क्योर द रूट्स। अब इतने बड़े पेड़ के रूट्स का एकदम से वो निकाल के ठीक करेगा क्या? नहीं। तो थोड़ा थोड़ा हाइपोथेटिकल सिचुएशन है, थोड़ा थोड़े रूट्स को वहाँ की ज़मीन खोदेगा, कुछ अगर उसको कीड़ा लगा है तो वो कट करेगा, वहाँ पे दवाई छिड़केगा, फर्टिलाइज़र डालेगा, फिर से सॉइल डालेगा, पानी डालेगा, हील होने के लिए कुछ समय देगा, और फिर उसके बाद कुछ दिनों के बाद दूसरा हिस्सा, फिर तीसरा, फिर चौथा, ये सब करके एक दिन उसके सारे रूट्स जो है उस ट्री के, पेड़ के, वो ठीक हो जाएंगे। अब आप मुझे बताना, जो डिफरेंस हमें फ्रूट में देखना है, ये सारे रूट्स ठीक होने के बाद ही दिखेगा या एक एक सेक्शन ठीक होने लगेगा, हील होने लगेगा और वैसे दिखने लगेगा? सारे के बाद। फ्रूट्स में डिफरेंस एक एक सेक्शन ठीक होते होते ही दिखाई देने लगेगा, क्योंकि वहाँ पे तो अच्छा वाला न्यूट्रिशन वहाँ से थोड़ा थोड़ा तो जाने लगा है ना। इफ नहीं देगा, अच्छा आप सोच के देखना इसके ऊपर, हाँ सोच के ही बोल रहे हैं, वेरी गुड, ठीक है। कंप्लीटली अच्छे की बात नहीं, अच्छा ठीक है, ये हाइपोथेटिकल सिचुएशन ही है, थेरोटिकली लेते हैं इसको, है ना। तो थोड़ा ठीक हुआ तो क्या हो जाएगा, फ्रूट्स धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा ठीक होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, अभी इतना सब करने के लिए 4 चीज़ों की ज़रूरत है। हाँ, पहले तो उस माली का उस पेड़ के साथ प्यार होना चाहिए तो वो इतना काम करे, है ना। तो पहले तो प्यार, द लव विद दैट पर्टिकुलर ट्री। दूसरा क्या है, he should have knowledge how to work upon that particular situation. Then third thing is determination. हाँ मुझे करना ही है, या हम कहें डेडिकेशन, करना ही है मुझे, कुछ भी हो जाए, कितना भी समय लगे। और फिर उसके बाद है पेशेंस, क्योंकि रिजल्ट आने में टाइम लगता है। ये 4 चीज़ें चाहिए।
है तो ही ये सारा काम हो सकता है, अदरवाइज नहीं हो सकेगा। ठीक है, अभी ऐसा ही कुछ ट्री यहाँ पे भी है। बाहर कुछ कुछ फ्रूट्स दिखाई दे रहे हैं, थॉट्स है, फीलिंग्स है, कभी वर्ड्स है, कभी एक्शंस है, बिहेवियर है ना, फ्रूट्स दिखाई दे रहे हैं। अब पेशेंस है ना, वो मुझे पसंद नहीं आ रहे, काम हम बाहर ही कर रहे हैं, है ना, वो माली ने पहले जैसे किया था, अब कहाँ करना है, हम तो समझदार हैं ना, सारे माली समझदार है यहाँ पे अब वो क्या करेंगे, अंदर रूट्स पर काम करना शुरू करेंगे। बट यहाँ पे 4 कंडीशन है। कौन से वाले 4 मैंने कहे? पहले तो क्या चाहिए? लव चाहिए। तो यहाँ पे ना सेल्फ लव चाहिए, मेरा खुद से प्यार होना चाहिए, मेरे अंदर ये स्ट्रॉन्ग फीलिंग होनी चाहिए कि आई डिज़र्व अ पीसफुल हैप्पी लाइफ। जब तक ये नहीं है ना तो हम सहन करते चलेंगे, एडजस्ट करते चलेंगे, कुछ हाथ पैर नहीं मारेंगे, जो है ना ठीक है, चलो है भाग्य में, भगवान का दिया हुआ है, ऐसे ही जिए, भगवान क्यों किसी को दुख देगा, है ना, ये तो मेरे पहले के कर्म है जो मेरे सबकॉन्शियस माइंड में वो काम कर रहे हैं अभी, है ना। तो पहले सेल्फ लव। तो किसी को भी 100% हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस अनुभव करना है तो वो थोड़ा सा अपना ये वाला पॉइंट चेक कर ले कि मैं कितना अपने से प्यार करती हूँ। अगर आप 100% हेल्थ पे जाएंगे तो रिलेशनशिप विल गो डाउन। 100% हेल्थ वेल्थ एंड हैप्पीनेस, ऑल द 4 थिंग्स। हाँ, हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता। दैट इज़ व्हाट वी सेड ना, अरे माई आउटर वर्ल्ड इज जस्ट द रिफ्लेक्शन ऑफ माई इनर वर्ल्ड। तो उसके ऊपर मैं काम करती जाती हूँ ना, बाहर चेंजेस आते ही जाते हैं अपने आप। नहीं, वो 100% हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस की बात कर रहे हैं, है ना। और ज़रूर इसमें एक चीज़ को हमें समझना है कि पीपल एंड सिचुएशन मेरे वे से नहीं चलेंगे, ये ज़रूरी नहीं, वहाँ पे हम 100% नहीं कह रहे हैं। वो सब कुछ होते हुए यहाँ पे मैं कैसी हूँ और कैसे चीज़ों को हैंडल कर रही हूँ, निभा रही हूँ, वहाँ पे मैं, क्योंकि देखो खुशी जो है ना, ये मन की बात है ना। हाँ, करोड़ों की मालमत्ता है, सब कुछ है, लेकिन लोग नाखुश है, और कोई एक झोपड़ी में रह रहा है लेकिन खुश है, तो खुशी बाहर की चीज़ों पर डिपेंडेंट है ही नहीं, तो वहाँ पे 100%। बाकी बाहर क्या चल रहा है ये हमारे हाथ में नहीं है, ठीक है। तो पहले तो क्या चाहिए, अपने साथ प्यार चाहिए। दूसरा नॉलेज, जो अभी हम देखेंगे। तीसरा डिटर्मिनेशन तो है, और लगता है हम देख रहे हैं अपने ऊपर काम करते हैं। तो ये सिंपल जर्नी नहीं है, सिंपल है बट बहुत शॉर्ट जर्नी नहीं होता है ये, क्योंकि इतना सब कुछ है अंदर, एक एक को इतने सारे रूट्स है, पेशेंटली करना पड़ता है। कभी इस आदत के ऊपर काम किया, उसको थोड़ा ठीक किया, उससे कुछ लर्निंग्स लिए, उसका थोड़ा अच्छा अनुभव भी किया, अच्छा इससे ये डिफरेंस आया मेरे जीवन, फिर दूसरे के ऊपर काम किया, इसके ऊपर कर रही हो, फिर यहाँ पे गलती कर देती हूँ, फिर से उसके ऊपर काम किया। तो सेल्फ लव इस जर्नी में ना, सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन की जर्नी में सेल्फ लव बहुत इंपॉर्टेंट है। इट इज़ अ प्रीरिक्विजिट, है ना, ये मेन कंडीशन है। ये नहीं है तो ये नहीं हो सकता, ये जर्नी नहीं हो सकता, है ना। और फिर है पेशेंस, पेशेंस चाहिए, ठीक है। दूसरों के साथ इतना पेशेंस दिखाते हैं, अपने साथ भी दिखाना है ना। तो यहाँ पे क्या होता है, गलती करते हैं ना तो हमारा सेल्फ टॉक जो है वो बहुत बार निगेटिव, क्रिटिकल, टॉक्सिक भी हो जाता है, वो नहीं करना है। वरना हम अपने ऊपर ये ध्यान ज़रूर दें कि यहाँ पे अपने को नहीं हारना है। मन जीते जगत जीत, जिसने अपने मन को जीता वो जग को भी जीत सकता है। तो मन को दमन नहीं करना है, उसको क्या करना है, सुमन। तो निगेटिव है तो खुद को ही हम कोसते रहे, या निगेटिव थॉट्स आ रहे हैं उनको दबाने की कोशिश करें, ये नहीं करना है। समझना, एक्सेप्ट करना है कि ठीक है ये मेरे अंदर है, अब उसके ऊपर काम करो। सो वी नीड टू बी सॉल्यूशन ओरिएंटेड रादर देन प्रॉब्लम ओरिएंटेड। है मैं ऐसी हूँ, मेरे जीवन में ऐसे है, मेरा ये रिश्ता ऐसा है, ये सब नहीं। अब मुझे क्या करना है, व्हाट शुड आई डू नाउ, उसके ऊपर बस हम फोकस करें तो आगे बढ़ते जाएंगे, ठीक है। तो ये ऊपर वाला जो हिस्सा है दैट इज़ कॉन्शियस माइंड, एंड देन दिस इज सबकॉन्शियस माइंड और संस्कारास। तो
ये जो दिन भर हम अनुभव करते हैं ना, मेरा मन ये बोल रहा है, वो हो रहा है, ये सब कॉन्शियस माइंड में है। काम यहाँ पे नहीं करना है, काम यहाँ पे करना है। यहाँ पे तो थोड़ा बहुत चलो हम अपने ऊपर काम कर लेते, बट मेन काम यहाँ पे है। अब ये जो संस्काराज है, इनको सबकॉन्शियस माइंड एंड अनकॉन्शियस माइंड भी कहा जाता है, या पर्सनालिटी, मेमोरी माना स्मृति, कंडीशनिंग, टेंडेंसीज, कुछ भी नाम हम दे सकते हैं। और ये कैसे होता है? आइसबर्ग जैसे। तो मेरा एग्जैक्टली। सो मेरा कॉन्शियस माइंड का रोल 10% वाला ही है। मेन सारा काम जो हमारा चल रहा है सबकॉन्शियस माइंड के थ्रू ही चल रहा है। और अगर अंडर करंट जो है वो एक डिफरेंट डायरेक्शन में है, एयर फ्लो कुछ और डायरेक्शन में है, तो वो आइसबर्ग कौन से डायरेक्शन में जाएगा? अंडर करंट के, क्योंकि 90% ऑफ द आइसबर्ग इज बिलो अंडर द वाटर, राइट? वैसे ही है, हम कितना यहाँ पे सोचते हैं कि ये गलती फिर से नहीं करेंगे, फिर से ऐसी बात नहीं करेंगे, मुझे जल्दी उठना है, मुझे एक्सरसाइज शुरू करना है, कितने ना चेंजेस हम चाहते हैं, लेकिन वो सारे सब कॉन्शियस माइंड के लेवल पर हो रहे हैं और अंडर करंट कुछ और है। इसी कारण सोच कर भी हम बहुत बार पूरी रीति से ट्रांसफॉर्मेशन ला नहीं पाते। तो चेंज कहाँ पे करना है? उस 90% पर, सबकॉन्शियस माइंड पर। तो इसको हम कहेंगे डीप्रोग्रामिंग एंड रीप्रोग्रामिंग ऑफ आवर संस्कारास। And in order to do that, we need to understand what is there in my sanskaras. तो सबसे पहली जो बात है वो क्या है? The information that we take in throughout the day and the knowledge that we take in. दोनों में डिफरेंस तो है ना? है ना? जानकारी और ज्ञान शब्द ही कितने अच्छे हैं। डिफरेंस तो है ना? हाँ, इन्फॉर्मेशन तो किसी भी चीज़ के बारे में हो सकती है ना, वेदर के बारे में, इस जगह के बारे में, हम एक दूसरे के बारे में, देश विदेश के बारे में, हर एक चीज़ के बारे में। तो ये आज ऐसी है तो कल चेंज भी तो हो सकती है। लेकिन ज्ञान, नॉलेज को ट्रुथ कहा जाता है, सत्य, वो नहीं बदलता, है ना? तो सत्य ज्ञान जब हम लेते हैं तो वो भी लेते हैं तो कहा जाता है, हमें याद भी आता है ना, हमने कुछ अच्छा सुना याद आता है तो कहाँ ना कहाँ मेरे मेमोरी में है ना। तो मेरे संस्कारों में या स्मृति में क्या क्या होता है? जो भी इन्फॉर्मेशन हम पढ़ते हैं, सुनते हैं और देखते हैं, वो सारा मेरे अंदर जा रहा है। ठीक है, तो अभी थोड़ा सा रिफ्लेक्ट करें आज के समय पर द क्वालिटी ऑफ इंफॉर्मेशन दैट आई एम टेकिंग, उसकी क्वालिटी कैसी है? वो क्वालिटी, व्हाट इज़ द क्वालिटी? फुल ऑफ नेगेटिविटी, कॉम्प्लिकेटेड, ओके, मिक्स्ड है, रियलिटी, ओके, लो वाइब्रेशंस। वो सारी जो इन्फॉर्मेशन आ रही है वो कौन से क्वालिटी की है? क्या देख रहे हैं जो हमने पहले देखा था ना, सारे निगेटिविटीज़ है ना, टेंशन के वाइब्रेशन से, स्ट्रेस है, लड़ाई है, झगड़ा है, हेट्रेड है, बदला लेने की इच्छा है, बहुत सारा क्रोध, एंगर है। हाँ, न्यूज़ में क्या दिखाते हैं? आज के समय पर क्या बेचा जा रहा है? स्ट्रेस बेचा जा रहा है, दुख बेचा जा रहा है ना, मिजरी, एंगर, वही बेचा जा रहा है और हम ज़बरदस्ती उसके ग्राहक बन रहे हैं, है ना? इवन इन एवरीवेयर, हर जगह आप सीरियल्स देखो, न्यूज़ देखो, होती छोटी सी घटना है, उनके पास क्लिप 1 सेकंड की भी नहीं होगी, दिन भर चलाते जाएंगे और हम भी देखते हैं, है ना? वीडियोस जो आते हैं सोशल मीडिया पर, सारा जो है निगेटिव कंटेंट अंदर जा रहा है। और हाँ, वो तो कमा रहे हैं और हमारा क्या हो रहा है? हम गवा रहे हैं। एब्सोल्युटली, हमारा कुछ लेना देना ही नहीं है। मेरा लेना देना मेरे लाइफ से है ना। तो सेल्फ लव है तो आई विल हैव दैट इनर स्ट्रेंथ टू से नो टू वेस्ट नेगेटिव टॉक्सिक कंटेंट। न्यूज़पेपर, सोशल मीडिया, टीवी, बातें एक दूसरे के साथ की, मोबाइल, है ना। अगर मुझे एक अच्छा 100% हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस वाला डेस्टिनी, भाग्य जीना है तो, और अगर मैं खुद से प्यार करती हूँ तो, ठीक है। फिर दूसरा क्या है उसके अंदर? माई पास्ट एक्सपीरियंसेस एंड देयर इंटरप्रिटेशंस, क्योंकि एक्सपीरियंस तो एक हो सकता है, उसके इंटरप्रिटेशंस बदल सकते हैं, है ना।
मैंने कैसे उस चीज़ को समझा, अनुभव किया, वो स्टोर हो जाता है ना। हमारी जो मेमोरी है वो इमोशनल मेमोरी भी है, एक तो है विजुअल मेमोरी। हमने कोई एक सीन अगर आपको बोला है ना, आपका घर देखो, घर का जो लिविंग रूम है उसको देखो, तो देख पा रहे हैं है ना, तो विजुअल सामने आया ना, तो मेमोरी में कहाँ पे तो विजुअल स्टोर्ड है तो वो सामने आया। बट एट द सेम टाइम इट इज़ इमोशनल ऑल्सो, और इसीलिए कभी हम कोई पास्ट वाली चीज़ याद करते हैं, वो सुख वाली है तो हम एक स्माइल आ जाती है चेहरे पर, कोई दुख वाली है तो फील करते हैं ना, कभी रोना भी आ जाता है, कभी गुस्सा आ जाता है। अभी वो हो गया, वो एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है, वो मेरी मेमोरी में है, बट व्हेन आई रीलीव दैट पर्टिकुलर सीन आई एक्सपीरियंस द सेम फीलिंग्स अगेन, बिकॉज विद दैट पर्टिकुलर सीन वो वाइब्रेशंस अटैच हुए थे। एक एक सीन जो हम जी रहे ना, अभी एक एक सीन, अभी इतने समय से हम साथ में हैं, एक एक सीन मेरे अंदर, हम सब के अंदर विजुअल के रूप में अंदर जा रहा है, फीड हो रहा है, बट एट द सेम टाइम जो हम फील कर रहे हैं ना, वो भी उसके साथ वाइब्रेशंस अटैच होके ही जा रहा है। तो इसी कारण जो भी पास्ट एक्सपीरियंस मैंने किया और तब मैंने जो फील किया, उसको अर्थ लगाने के बाद वो भी स्टोर्ड है। फिर मेरे ऑब्जर्वेशंस एंड माय ओन इंटरप्रिटेशंस, है ना, वो मेरा एक्सपीरियंस नहीं है, बट मैं देख रही हूँ, न्यूज़ मैंने पढ़ती हूँ, सुनती हूँ, है ना, ये सारी चीज़ें या जनरल समाज में होते हुए देखती हूँ, और अपना ही कुछ इंटरप्रिटेशन लगा के अंदर स्टोर होता जाता है। ये भी मेरे संस्कारों में है। फिर मेरी सारी आदतें, ऑल माई हैबिट्स ऑफ थॉट्स, वर्ड्स एंड एक्शंस, इट इज़ देयर इनसाइड मी एंड दैट इज़ वाई दे आर गेटिंग रिपीटेड। प्रोग्रामिंग अंदर नहीं तो मैं बार बार वैसे ही कैसे कर सकती हूँ? सो इट इज़ देयर इनसाइड मी। Then all my belief systems, attitudes, perceptions, values and principles, ये भी तो मेरे अंदर है, इसीलिए तो काम आते हैं ना ये सारी बातें। और ये मेन सेक्शन है, ये मेन प्रोग्रामिंग है अंदर की, वो तो डेटा है सारा, ये प्रोग्रामिंग है। देखो आप, कोई भी इन्फॉर्मेशन हम लेते हैं या जीवन में किसी अनुभव के थ्रू हम जा रहे हैं, सीन के थ्रू, वहाँ पे मेरी सोच क्या चलेगी ना, ये इस सेक्शन से डिसाइड होता है। अंदर का मेरा प्रोग्रामिंग क्या है, बिलीफ सिस्टम क्या है। अगर मेरी एक बिलीफ सिस्टम किसी एक स्पेसिफिक जगह के लिए पॉजिटिव है, तो उसके बारे में मैंने सुना भी तो भी मुझे अच्छा लगेगा, और वो मैं कभी गई थी, मुझे पसंद नहीं आया, तो मेरा उसके प्रति एटीट्यूड अभी निगेटिव है। और कोई कहता है चलो हम ना वैकेशन के लिए वहाँ पे जाएंगे, इमीडिएटली क्या होगा, एक निगेटिव थॉट, नहीं वहाँ पे नहीं जाना है। और वो सिर्फ एक्सपीरियंस से नहीं आती है, सुनने से भी आता है। कोई मेरा कलीग कहाँ पे ऑन साइट किसी असाइनमेंट के लिए गया था और उसने कहा कि चलो वहाँ के लोग हैं ना, बहुत रेसिज्म है वहाँ पे, कोऑपरेट नहीं करते। अभी वो उसका अनुभव था, बट उसने जो मुझे सुनाया उससे मेरी एक बिलीफ सिस्टम तैयार हो गई कि वहाँ के लोग वैसे हैं। और सपोज़ अगर मैं भी वहाँ पे जाती हूँ बाद में असाइनमेंट के लिए, तो आई गो देयर अलॉन्ग विद दैट बिलीफ सिस्टम, और उन्होंने कुछ नहीं किया है, लेकिन मेरा चश्मा अभी वो लग गया है। तो सारा प्रोग्रामिंग ये है, my belief systems, my attitudes, perceptions, values and principles. ये भी मेरे अंदर stored है। Samskaras can correlate with character or quality. No, samskara is a Hindi word. हाँ, उसको ही हम कैरेक्टर कह सकते हैं, है ना, पर्सनैलिटी, कैरेक्टर, व्यक्तित्व, व्यक्तिमत्व, है ना। एंड देन द लास्ट थिंग विच इज स्टोर्ड इनसाइड इज माय वर्च्यूज एंड पावर्स। ये भी तो हमारे अंदर है। क्या हम जीवन में अनुभव नहीं करते अपने अच्छी अच्छी विशेषताएं, गुण, शक्तियाँ अनुभव करते? तो कहाँ से आए? अंदर से ही तो बाहर एग्जिबिट हुए ना, है ना। कोई एक कंटेनर है, उसमें पानी भरा हुआ है, और फिर मैं उसका टैप ओपन करती हूँ, ग्लास पकड़ती हूँ नीचे, तो क्या आएगा? शुद्ध पानी, क्योंकि वही अंदर था। और वही उसमें मैंने शरबत डाल दिया, और कोई आता है और वो लेता है, तो क्या मिलेगा? शरबत। और वहाँ पे अगर गंदा पानी रख दिया तो हाँ, तो जो मेरे अंदर है वही तो आएगा। अभी इन सब की जो क्वालिटी है, इनकी क्वालिटी तो अच्छी रहती है, वर्च्यूज़ एंड पास की, लेकिन कितने परसेंटेज में है, इससे डिफरेंस आएगा। बाकी का ये सारा जो है, इनकी क्वालिटी अगर निगेटिव के तरफ जा रही है, तो एक मेरी आदत हो जाएगी कि जो थॉट आया उसकी क्वालिटी निगेटिव रहेगी। जो अंदर है वही तो बाहर आएगा। तो जो अंदर मेरे सबकॉन्शियस माइंड में है, रूट्स में है, वे उसी क्वालिटी के थॉट्स बाय डिफ़ॉल्ट, और इसीलिए आपने कहा ऑटोमेटिकली आ जाते हैं। हाँ, ऑटोमेटिकली जनरेटेड,
ऑटोमेटिकली जनरेट कैसे हो रहे हैं? क्योंकि अंदर है. That's also you can control. हाँ, दैट इज़ व्हाट वी आर गोइंग टू लुक एट नाउ, है ना. तो अगर ये अच्छी है तो क्या होगा? अच्छा वाला होगा, है ना. रिजल्ट अच्छा होगा, मैंने थॉट ही अच्छा होगा तो आगे का सारा तो अच्छा ही होना है ना. तो अब हमें क्या करना पड़ेगा? हम सबको पता है अभी के समय पर यहाँ पे मिक्स है सारा, ठीक है. अभी अगर हम जैसे उस माली ने रूट्स के ऊपर काम किया था, अगर हम इन सारे सेक्शंस के ऊपर काम करना शुरू करें विथ नॉलेज. सेल्फ लव तो है सबके पास, फर्स्ट कंडीशन टिक मार्क्ड. दूसरा नॉलेज, वो हम ले रहे हैं कि काम यहाँ पे करना है. आई नीड टू वर्क ऑन माई बिलीफ सिस्टम्स. फर्स्ट थिंग. फिर एटीट्यूड्स, किसी व्यक्ति के लिए, परिस्थिति के लिए, स्थान के लिए, वस्तु पदार्थ के लिए कुछ एटीट्यूड बना के रखा है. ये पहला वाला प्रोग्रामिंग. नाउ आई नीड टू रीथिंक, वर्क ऑन माई एटीट्यूड कि क्या ये सच में ठीक है या ये मेरा ही लगा हुआ चश्मा है. बहुत बार वो व्यक्ति तो चेंज भी हो गई और हम उसी चश्मे से देख रहे कि ये ऐसे है ना. सो आई नीड टू बी वेरी अवेयर ऑफ द काइंड ऑफ थॉट्स आई एम क्रिएटिंग एंड आई नीड टू peep inside my subconscious mind. मुझे देखना है हर बार इसका रूट कहाँ पे है, इस थॉट का रूट कहाँ से आया हुआ है और क्या वो राइट है. और राइट की एक ही परिभाषा है, इट हैज़ टू बी बेस्ड ऑन माई इनेट क्वालिटीज़. आत्मा के जो 7 गुण हैं, प्रेम, शांति, शक्ति, आनंद, पवित्रता, ज्ञान, सुख, है ना. इसके आधार से माना ठीक है, करेक्ट है. इसके विपरीत कुछ भी है माना वो पोल्यूटेड है, नॉट गुड फॉर मी. बस उतना ही मापदंड लेना, नहीं तो फिर वो बहुत रिलेटिव हो जाएगा. नहीं, मेरे लिए तो ये ठीक है, आपके लिए वो गलत हो सकता है. ऐसी वाली बात नहीं होती है. या तो ये है या तो ये, इसमें ग्रे नहीं है, ब्लैक एंड वाइट. तो वाइट क्या है? क्या है बेंचमार्क? द इनेट क्वालिटीज़ ऑफ द सोल. उसके आधार से ये चीज़ें हैं तो ये राइट है. फिर अलाउ देम. Allow those belief systems, attitudes, perceptions, values, principles, allow those habits, allow those interpretations, allow that information. उसके विपरीत कुछ भी है, अपोजिट कुछ भी है, do not consume. पहले ही अंदर बहुत कुछ है, उसको हमको साफ करना है. तो नया तो हमें नहीं लेना है ना. अभी ये काम करना है, जैसे मैंने कहा कि निगेटिव अभी हमें अंदर नहीं लेना है और अच्छा लेना है. बाकी सारे अगर पहला छोड़ कर आप बाकी देखें तो ये पहले से अंदर है, इनके ऊपर नहीं हम काम कर सकते, है ना. वर्च्यूज़ एंड पावर्स, इसको हम बढ़ा सकते हैं थ्रू मेडिटेशन. बाकी ये तो सारी प्रोग्रामिंग की बातें हैं, हार्डवेयर हो गया, वो अभी अंदर है, प्रोग्राम्ड है. ऊपर वाली जो बात है ना, इन्फॉर्मेशन एंड नॉलेज, ये मेरे हाथ में है कि मैं पावरफुल नॉलेज लेती जाऊँ, अच्छी इन्फॉर्मेशन लेती जाऊँ और निगेटिव कंटेंट, निगेटिव इन्फॉर्मेशन को कम्प्लीटली ब्लॉक कर दो. ये तो मेरे हाथ में है ना. जैसे चलो एक एग्जांपल, जैसे मैंने कहा पानी का कंटेनर है, उसमें बहुत ख़राब पानी है, हमने बहुत दिनों से देखा ही नहीं और उसके ऊपर ढक्कन भी नहीं था. तो सारा इधर उधर का कचरा, ये वो सब कुछ अभी उसके अंदर आ गया है. अब जाके मुझे थोड़ा लग रहा है इसको मैं थोड़ा साफ़ करूँ, लेकिन है क्या कि वो फिक्स्ड है, उसको मैं उठा के उल्टा करके क्लीन नहीं कर पाती हूँ. और कंडीशन दूसरी ये भी है कि कोई मग लेके पानी नहीं निकाल नहीं सकूँगी और मुझे क्लीन करना है. कैसे क्लीन करूँ? विच काइंड ऑफ वाटर? गुड वाटर, क्लीन वाटर. कीप ऑन पोरिंग क्लीन वाटर. एग्जैक्टली, कंप्लीटली, until the bad water comes out completely, है ना. तो यहाँ पे भी पेशेंस है. बट वो जो सारा है ना, वो नीचे जम जाता है, निकलता नहीं है, वो शॉर्टकट है. क्लीन नहीं हुआ पानी, वो जो नहीं, आपने ठीक कहा, बट वो नीचे जम जाता है ना, बाहर निकल के आता है क्या. हाँ, तो हमें क्या करना है, हमें रखना नहीं है अपने अंदर कुछ भी, क्योंकि वो आज नहीं तो कल काम कर लेगा, है ना. हमको कम्प्लीटली निकालना है. तो दिस इज़ द सॉल्यूशन, दैट वी कीप ऑन पोरिंग क्लीन वाटर. थोड़ा आया, क्या हो गया, अंदर का गंदगी है, थोड़ा तो डाइल्यूट हो जाएगा, डालते जाओ और डाइल्यूट होगा. ऊपर का छोटा मोटा कचरा जो है, वो पत्ते हैं, ये है, वो सारा नीचे गिर जाएगा, पहले पानी के साथ बाहर आ जाएगा. फिर जो मड़ीनेस था उसका, एकदम गंदा था, धीरे धीरे कम होता जाएगा, क्लैरिटी आती जाएगी. और अगर छोटे छोटे पत्थर कंकड़ भी है तो क्या करना है, पानी का फोर्स बढ़ाओ,
उस फोर्स से वो भी बाहर आ जाएंगे, है ना। वैसे ही यहाँ पे क्या करना है, प्योर इन्फॉर्मेशन अंदर लेनी है, नॉलेज, सत्य ज्ञान को हमको अंदर लेते जाना है। धीरे धीरे वो ना हर एक चीज़ पर काम करते, क्योंकि सत्य ज्ञान में, नॉलेज में ये ताकत है कि वो हर एक चीज़ को साफ करता जाए। उसके लिए सिर्फ मुझे अटेंशन रखना पड़ता है, उस ज्ञान को मुझे यूज़ करना पड़ता है, उसके ऊपर मनन चिंतन करना होता है। बट नॉलेज इज़ लाइट, नॉलेज इज़ माइट। तो आप ही एक अंदर प्रकाश आ जाता है कि ये सही है, ये गलत है, और माइट भी है, अंदर ताकत आ जाती कि मुझे ये करना है, ये नहीं करना है। ठीक है, नॉलेज। और उसके साथ अभी वो मैंने साफ तो कर रही हूँ और आते जाते कुछ कचरा भी डाल रही हूँ उसके अंदर, चलेगा काम? नहीं। तो नया कचरा डालना है क्या? अभी नहीं करना है। तो वैसे ही व्हाट्सएप पर, सोशल मीडिया पर, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, न्यूज़पेपर्स है, टीवी न्यूज़ है, बातें हैं एक दूसरे के साथ की, उससे हमें क्या लेना है? अच्छा ही लेना है, ख़राब मुझे नहीं लेना है। कोई हमें फोर्स नहीं करता है। 99% ऑफ द टाइम हम ही खोल खोल कर देख रहे हैं और पढ़ रहे हैं, और कभी कभार कोई सुना रहा होता है। लेकिन यहाँ पे मैं जैसे एम्पावर्ड हो जाती हूँ और नॉलेजफुल हो जाती हूँ, हमारे अंदर वो ताकत आ जाती है कि हम उनके डायरेक्शन, थॉट के डायरेक्शन को चेंज करें और उन्हें भी पॉजिटिव बना दें। ठीक है, तो ये बात कि क्या करना है मुझे, सत्य ज्ञान, अच्छा नॉलेज। जैसे आज आप यहाँ पे बैठे, आप आते ही रहते, बहुत सारे आप में जो बैठे यहाँ पे बैठे हुए हैं वो यहाँ पे आते रहते हैं, है ना। तो आप क्या कर रहे हो, अंदर कुछ ना कुछ अच्छा ले रहे हो, उससे भी वो क्लैरिटी आती जाएगी पानी में, सबकॉन्शियस माइंड में। एंड एट द सेम टाइम दूसरा जो केयर लेना है, अंदर अभी ख़राब कुछ नहीं लेना है। और तीसरी जो बात है, इनको बढ़ाना है, वर्चूज़ एंड पास, एंड दे कैन ओनली बी इंक्रीज्ड बाय मेडिटेशन। मोबाइल मेरा अगर डिस्चार्ज हुआ है तो चार्ज करना पड़ेगा ना, है ना। तो ये जो स्पिरिचुअल बैटरी है अभी वर्चूज़ और पास से डिस्चार्ज है, थोड़ी डिप्लीट हो गई है ना। प्रेम, सुख, शांति, आनंद, पवित्रता, ज्ञान, शक्ति, कितने परसेंटेज में आज हम अनुभव कर रहे हैं? कम है ना, इसको तो मानते हैं ना, है बट कम है। तो अभी क्या करना होगा, चार्ज करना होगा, एंड दैट चार्जिंग इज मेडिटेशन। The spiritual battery needs to get connected to the powerhouse of spiritual energy, and that is God Himself, the Supreme Being. So we need to learn meditation. We need to practice meditation. Establish connection with Him, relationship with Him. तो virtues and powers भी बढ़ते जाएंगे, नॉलेज भी बढ़ रहा है। नाउ दैट नॉलेज विल हेल्प मी, विल गाइड मी हाउ टू हैंडल पीपल एंड चैलेंजिंग पीपल एंड चैलेंजिंग सिचुएशंस। और सिर्फ मेरे पास नॉलेज नहीं है, अब वो पार है कि मैंने जो सोचा, जो मुझे पता है वो मैं इम्प्लीमेंट कर पाऊँ। और करते करते संस्कार बदलते जाएंगे, क्योंकि जैसे एक्शंस है वैसे संस्कार बनते हैं। तो अभी अलग डायरेक्शन के थॉट्स है, वैसे अलग एक्शंस है, तो अलग डेस्टिनी बनती जाएगी, है ना। 100% हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस के लिए 100% हेल्थ, लाइक पावर, नॉलेज, पीस के ही थॉट्स निकलने चाहिए, तो ही तो वो 100% वाला डेस्टिनी हम एक्सपीरियंस कर पाएंगे। तो काम हमें यहाँ पे करना, और वो बहुत सिंपल भी है, लेकिन वही 4 कंडीशंस: सेल्फ लव, नॉलेज, डिटर्मिनेशन एंड पेशेंस। दैट इज़ इट। तो लाइक माइंडेड कम्युनिटी में जब हम आते हैं, हम देखते हैं कि इसका भी वही प्रवास है, उसका भी वही है, तो वो एक मोटिवेशन मिलता है और हम करते जाते हैं, आगे बढ़ते जाते हैं। ठीक है, ओम शांति। हम एक शॉर्ट मेडिटेशन करेंगे, एक सेल्फ रिफ्लेक्शन मेडिटेशन। ठीक है, सिट कंफर्टेबली, अलर्ट और कंफर्टेबल होके बैठे। फीट फ्लैट ऑन द फ्लोर, क्रॉस लेग नहीं बैठे,
स्पाइन स्ट्रेट, आपके हाथ कंफर्टेबली रखे हुए हो। आप आंखें खुली भी रख सकते हो या फिर बंद भी कर सकते हैं। अपनी सांसों के ऊपर ध्यान देंगे। धीमी और लंबी सांसें अंदर लेनी है और बाहर छोड़नी है। हर एक सांस अंदर लेते वक्त ये अनुभव करें कि इस विश्व की जो शांति है इन सांसों द्वारा मेरे तन और मन में समाती जा रही है। सांसें बाहर छोड़ते वक्त ये अनुभव करें कि मेरे तन या मन पर जो कोई बोझ है वो इनके द्वारा बाहर फेंका जा रहा है। हर एक सांस के साथ यह अनुभव करें कि मेरा तन और मन एकदम हल्का होता जा रहा है। I'm feeling relaxed, very light. अब देखिए अपने मन को। एक छोटा सा कमरा मेरे ही अंदर है। खोले इस मन रूपी कमरे का दरवाजा, अंदर जाए और देखें क्या क्या है वहां पे। कैसी है ये रूम? क्लीन, नीट, टाइडी या स्कैटर्ड, क्लटर्ड? बहुत सारी बिना काम की चीजें इधर उधर पड़ी है। क्या है? हर कोई अपने मन को देखे। एक विजन आएगा आपके सामने, उसे देखें। कुछ भी वहाँ डिस्टर्बेंस है उसको क्लीन करें। अब आपका ध्यान एक टेबल पर जाता है। और आप ये महसूस करते हो ये तो मेरे ही जीवन का टेबल है। देखते हैं इसके एक एक पिलर को। देखें मेरा मन मुझसे क्या कह रहा है। क्या ये खुश है? क्या ये शांत है? या इसे मुझसे कुछ कहना है? इसे मेरी कुछ मदद चाहिए? Try to feel what your mind is trying to say to you.
देखे अपनी फिजिकल हेल्थ को। क्या मेरा शरीर मुझसे कुछ कहना चाहता है? क्या इसको कहाँ डिस्कम्फर्ट है जिसको मैं बस चला रहा हूँ? देखिए अपनी सांपत्तिक स्थिति को, अपने स्टडीज़, करियर, फाइनेंशियल कंडीशन को। Am I handling all my financial matters or my responsibilities properly? जितना डेडिकेशन, एफर्ट्स मैंने अपने काम में देना चाहिए, स्टडीज़ में, करियर ग्रोथ में देना चाहिए, क्या मैं वो सब कुछ कर रहा हूँ? और अब देखें अपने संबंधों को, लाए उनके चेहरे अपनी आँखों के सामने जो आपके जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है। क्या मैं इनसे खुश हूँ? क्या मैं इनको खुश रख पा रहा हूँ? क्या ये मुझसे कुछ कहना चाहते हैं जो वो कह नहीं पा रहे हैं? क्या मुझे उनसे कुछ कहना है जो मैंने अब तक नहीं कहा है? फील करें अपने तन, मन, धन और जन के स्वास्थ्य को। कुछ अच्छा और कुछ ऐसी चीज़ें जिन्हें आप परिवर्तन करना चाहते हो, ऐसे महसूस हुई होंगी। बस उन्हें बुद्धि से नोट करना और खुद को ही बताना that outer world is just the reflection of my inner world। और अपने इनर वर्ल्ड को चेंज करना completely मेरे हाथ में है। It is completely in my control। जो मैं अभी इसी क्षण से शुरू करने जा रहा हूँ। समाएंगे इस दृढ़ता को, दृढ़ निश्चय को अपने मन के अंदर कुछ और समय के लिए। ओम शांति। Thank you, sister, for the beautiful meditation. And as we come close to this inspiring evening with more of practicality, so what all I would like to ask, what all you have learned today about the thoughts, different type of thoughts, positive thoughts, negative thoughts, waste thoughts, necessary thoughts, right? We have also seen that what is the impact of our thoughts empirically through experiments, water experiments, plant experiments. And sister has also beautifully delved into the different type of sanskaras that we carry inside and how we can deprogram and program those sanskaras, right? So I would go back definitely to implement these insights and wisdom shared today, but I sincerely hope that you will also take these teachings away, go back, take it to heart and implement them in your day-to-day life.